Okay, I think अब start करते हैं. Let people join, and so maybe after 10 minutes I'll block the entries, so no one would be able to join. So what we have seen so far, how to install the package, and the package install करने के like there are different methods, and then there so many different topics are there within the Linux itself, which everyone should know. But we cannot afford हम लोग deep dive हर topic का नहीं कर सकते. Only the topics which are complex, very complex, like जो एकदम difficult subjects होते हैं, people struggle to understand. उसको हम लोग डीप डाइव करके विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन द बहुत ही सिंपलिस्टिक टर्म में. that's the idea ये है कि every time and time I should give you guys basic foundational conceptual understanding, and based on that conceptual understanding you should be able to take that and follow any steps, because जो भी लैब में हो रहा है that is, I mean, if you were to follow and do that, that is a step, but तुमको जब तक conceptual understanding nahi aayegi, so you gonna struggle, because the moment operating system change or things that we have that changes, you will struggle. Okay, so इसलिए जो भी topic discuss हो रहा है conceptually we are going over it, right? And again, there are few important topics which you are bound to come across while working on Linux, and based on what kind of project or what kind of organization you are working on, you may be interacting more or less. But there are few very basics to work with any kind of application you will come across. So what we're gonna do now, we'll combine it, because we have gone over for last 2-3 months, and basic understanding of सबको आ गई होगी. If नहीं आई है तो people are new here and they need to go and watch the previous videos. And question भी मैं ऐसे ही answer करूँगा जो कुछ ऐसे होंगे you have tried it. There are like new people and they'll ask question. I'm gonna simply ask you guys to go and watch the video, right? You can still ask the question, and something that is already been covered, you need to go back and watch the video and then bring yourself your understanding up to speed. So that's the way it's going to be, right? So please watch the previous videos, the new joiners and people who are joining, and like अपनी understanding को लेकर आ जाओ, ताकि जो current batch में हो रहा है, then you'll understand, and don't worry about we are हम लोग आगे भाग जा रहे हैं, तुम पीछे रह गए हो. You can always catch up. You can always do the catching. You have like whole week, so you can spend a couple of hours every day, and that's like you have uh, okay. So अभी हम लोग क्या करें, we start with the shell script, and along with shell script we'll बाकी चीजें भी cover करेंगे हम लोग, because we need to talk, we need to हमको start करना है Git, and then we also have to talk about different topics within the Linux, and बाकी जो topics है you can also prepare on your own, like you can follow the certification path. That's normally I recommend for to understand that particular I mean Linux में जो activities होती है, which you may or may not be come across you, and based on what kind of profile you have, right? But mostly DevOps people, they from the DevOps the expectation is there that you should know how to attach the drive, you should know how to work with the storage, you should know how to service it, because application बनती है, वो application को run करना है, and we need to basically convert that application to the service. So वो सारी चीजें भी हम लोग देखेंगे जो commonly activities as a DevOps guy or DevOps engineer you'll be asked to do. ठीक है, so we'll start with the shell script today, and shell script is like a bare or बहुत ही like a first point of our automation रहेगा, and automation has become part of this industry as well. I mean, there is two side of world normally. एक तो डेवलपमेंट वाला वर्ल्ड रहता है जहाँ पे सारे डेवलपर रहते हैं, एंड देन अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड जो है जहाँ पे सिस एडमिन्स रहते हैं. Now this sysadmins can be anything. I mean, they can be application administrator, they can be like any particular application का admin हो सकता है वो. He would just know that application. He could be a database administrator, server, and server is at the end of the day is also application. So you have developers who are like core development, and then you have the sysadmin. Traditionally,
they normally deal with the codes. They know like how to write the codes and everything. And these people, they don't they work with the CLI commands. That's, they are good with the CLI commands. But CLI commands, something I've been saying again and again, all the CLI commands जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, they are nothing but a code. ls command that we use, it's nothing but a code. And जो code developer ने लिखा हुआ है हमारे लिए for sysadmin. So we are, without developer we cannot do our work, because developer ने सारे commands हमको लिख के दिया. It's just a wrapper that we are invoking, हम लोग call करते हैं, and that's the way ये कर रहे हैं. तो अभी जो भी डेवलपमेंट रहता है, दे विल बी डूइंग इट. एंड ट्रेडिशनली वही लोग करते थे, एंड सिस एडमिन नहीं करता था कुछ भी. सिस एडमिन का ऐसा था कि हमको बस कमांड्स लाके दे दो, मेक इट इजी फॉर अस. एंड देन यू हैव अनदर साइड ऑफ द पीपल दैट इज एंड यूजर, एंड दे एक्चुअली डोंट इवन, उनको तो मतलब को ये सब बताना ही नहीं है. अदरवाइज दे आर द एक्चुअली फॉर विच लाइक एंड यूजर्स जो हमारे रहते हैं, इनके लिए तो हम लोग काम कर रहे हैं. एंड उनके लिए हमको चीजें इजी बनानी है. अगर इजी नहीं बनेगी तो चीजें बिकेगी नहीं, और बिकेगी नहीं तो फिर देयर इज नो पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट और नो पॉइंट ऑफ कीपिंग एडमिन एज वेल. अगर तुम कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे डेवलप कर रहे हो, जब कोई यूजर बाय करेगा तभी तुमको एक ऑपरेशन सपोर्ट एडमिन की टीम लगेगी जो उसको सस्टेन करेगा थ्रू आउट इस लाइफ साइकिल. जब तक वो एंड यूजर उस एप्लीकेशन को यूज करेगा, डेवलपर ने अपना काम कर दिया, अब एडमिन के पास में आ गया है, वो उसको वॉचमैन की तरह बैठे, मतलब लिटरली वही काम रहता है. यू हैव टू जस्ट सिट एंड मेक श्योर के जो रिलेट करना है रियल वर्ल्ड से, तो लाइक वॉचमैन की तरह बैठ के देखते रहो, राइट. तो एंड यूजर ज्यादातर क्या यूज करेगा, यूआई फ्रेंडली चीजें यूज करता है. तो एक ही चीज मैं लिख देता हूँ जो बार बार अपना रहता है. तो यहाँ पे यूआई यूज करेगा, ये सीएलआई यूज करेगा. आज मॉडर्न एप्लीकेशंस की बात कर रहा हूँ. टू इंटरैक्ट विद दैट एप्लीकेशन, इफ यू हैव एनी एप्लीकेशन दैट, प्लीज म्यूट करो, राइट. अपने जैसे ज्वाइन कर रहे हो ना, तो म्यूट करके ही ज्वाइन करो सब लोग. नेक्स्ट टाइम से सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बीच में डिस्टरबेंस आ रही है. ओके. तो सीएलआई कमांड लाइन के टूल्स सीसी एडमिन ज्यादातर यूज करते थे, एंड डेवलपमेंट कर ले रहा था, एंड इट वाज ऑल गुड, एंड जो सब कुछ सही से जा रहा था. लेकिन क्लाउड आने की वजह से क्या हुआ है, क्लाउड हैज बिकम एन एप्लीकेशन. और उस एप्लीकेशन को इंटरैक्ट करने के लिए अब अलग अलग वे है. क्लाउड एक एप्लीकेशन है, मॉडर्न एप्लीकेशन है, तो मॉडर्न एप्लीकेशन 3 वे में तुमको इंटरैक्ट करने के लिए देती है. ठीक है. तुम यूआई से कर सकते हो, सीएलआई से कर सकते हो, और एपीआई से कर सकते हो. यूआई से अभी तक हमने देखा क्लाउड का कंसोल को. क्लाउड में हमने रिसोर्स बनाया, एडब्ल्यूएस पे वी हैव क्रिएटेड अ इंस्टेंस, जीसीपी पे वी हैव क्रिएटेड अ इंस्टेंस, एंड अजूर आल्सो विल सी दैट लेटर. तो यू हैव द यूआई जहां से हम लोग ये सारी चीजें बना पा रहे हैं. वी हैव सीन इट. सीएलआई से भी हम लोग कर सकते हैं, एंड एपीआई से भी कर सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज हैपनिंग ओवर द एपीआई. जब हम लोग यूआई से भी करते हैं, ब्राउजर हमारा वो चीज कर देता है. जब हम लोग कमांड से करेंगे, तो जो कमांड पूरा जो लिखा हुआ है ये लोगों ने, तो मेनली आइडिया यही है कि सिस एडमिन्स दे डोंट गो वेरी वेल विद द प्रोग्रामिंग, और उनको नहीं आता करने के लिए. तो दे ऑलवेज अवॉइडेड ये जो पार्ट ऑफ द सिस एडमिन है, दे अवॉइडेड. लेकिन क्लाउड आने की वजह से क्या हुआ है कि सिस एडमिन के जो भी एक्टिविटीज थे वो सारे ऑटोमेट, मतलब यू डोंट नीड टू फिजिकली गो. अगर मैं तुमको बोलता हूँ कि एक सर्वर में एक हार्ड ड्राइव लगाओ, तो तुमको जाके ऐसा कहीं पे जाके लगाने की जरूरत नहीं है. तुमको यहाँ पे से कुछ यहाँ पे से इंस्ट्रक्शन देना है, जाके हार्ड ड्राइव लग जाएगी उसके अंदर में. तो वहां पे ऑटोमेशन आ गया है. और अगर तुम ये हर चीज मैनुअली करते रहोगे, तो मैनुअली करने का प्रॉब्लम क्या रहता है कि तुम हर बार एरर करोगे. आज तुमने सही किया है, कल तुम गलत कर सकते हो. यू माइट फॉरगेट अ स्टेप. तुम एक कुछ भी स्टेप भूल जाओगे और गलत कर दोगे. लाइक मैंने एक जाएगा कि डिस्क का टाइप ये लेना था, तुमने डिस्क का टाइप कुछ और ले लिया. तो मैनुअल करने में ह्यूमंस आर ऑलवेज प्रोन टू एरर्स. मतलब ह्यूमंस हमेशा एरर करेंगे, मिस्टेक्स होती रहती है. कितना कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है कि अभी जो किया उसने वो हर बार वही चीज करेगा. ठीक है. तो जो वर्ड है ना, रिमेम्बर द वर्ड नाउ, राइट. और मैं बार बार बोलता हूँ कि वो आइडम पोटेंसी नहीं रहती है. हम ह्यूमंस में आइडम पोटेंसी नहीं है. ठीक है. जो तुमको काम मिलेगी डेवलपमेंट में, यहाँ पे मिल जाएगी. यहाँ पे लिख देता हूँ नो आइडम पोटेंसी, और यहाँ पे तो वर्ड का प्रोनाउंस भी करना सीख लो, बिकॉज हमारा जो डेवऑप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्ल्ड है अभी ऑटोमेशन वाला, यहाँ पे बहुत वर्ड यूज होता है ये वाला. आइडम पोटेंट. आइडम पोटेंट का मतलब रहता है कि जो तुम, और प्लीज किसी भी क्वेश्चन है ना, हैंड रेस करना है. ठीक है. डायरेक्ट अनम्यूट करके कुछ भी नहीं बोलना है. एंड आई आंसर योर क्वेश्चन इफ यू हैव एनी, राइट, जो रिलेवेंट होगा टॉपिक के लिए. ओके. सो कमिंग बैक टू आइडम पोटेंट. आइडम पोटेंट
जो है कि एक बार जो तुमने किया हर बार वही गारंटी करेगा, इंसान वो गारंटी तुमको नहीं दे सकता। मतलब लाइक मैं खुद भी नहीं दे सकता कि अगर मैंने अभी हाथ से ही कुछ किया तो मैं हर बार ऐसे ही करूंगा, एवरी टाइम गोइंग टू डू दैट। सो देयर इज, हम मुझ में कुछ, आई डोंट हैव दैट, लाइक आइडम पोटेंसी ह्यूमंस नहीं कर सकता। आइडम पोटेंट और आइडम पोटेंसी ये अब इंग्लिश के वर्ब और एडवर्ब वाला सेंटेंस है, तो यू शुड नो कि कब कहाँ पे यूज करना है तुमको सेंटेंस में। एंड यू विल सी दिस कमिंग अक्रॉस अ लॉट, हाँ, एटलीस्ट इन द डेवऑप्स साइड ऑफ द वर्ल्ड में, ठीक है। एंड डेवलपर मे हैव बीन यूजिंग इट एज वेल। इसका मतलब यही रहता है कि तुमने जो चीज अभी डिलीवर किया है, लाइक मैंने डेव इन्वायरमेंट जैसा बनाया हूँ, मैं क्यूए इन्वायरमेंट भी वैसा बनाऊंगा। एंड इफ आई एम यूजिंग सम काइंड ऑफ जो आइडम पोर्टेंट टूल्स है, देन आई एम गारंटी, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि वो जैसा मेरा, क्योंकि क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में, डेव वाला बोलता है कि डेवलपर बोलेंगे कि मैंने जो टेस्ट किया डेव इन्वायरमेंट पे, मैंने एप्लीकेशन को रन किया था, बिल्ड किया था, इट वाज ऑल वर्किंग फाइन। क्यूए वाला बोल देता है कि नहीं मेरे इस पे नहीं चल रहा, तेरे एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है। तो डेव क्या बोलेगा कि नहीं तेरे हार्डवेयर में प्रॉब्लम हो सकता है, मे बी तू कुछ अलग सर्वर पे उसको रन कर रहा है। तो आइडम पोर्टेंट यहाँ पे वो गारंटी दे देगा कि जो भी हार्डवेयर वो यूज कर रहा है, जो हमने बना के दिया है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर, दे आर एग्जैक्ट रेप्लिका, दे आर सेम, कुछ भी वहां पे चेंजेस नहीं है। तो वो जो एक है कि रूल आउट हो जाता है कि नहीं भाई इंफ्रास्ट्रक्चर में देयर इज नो प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज इन योर एप्लीकेशन, मे बी देयर इज सम बग, मे बी सम डिपेंडेंसी इज मिसिंग। डिपेंडेंसी के लिए जो झगड़े होते हैं उसके लिए कंटेनर आ गया है, तो कंटेनर के टाइम पे विल डिस्कस दैट मोर। बट अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के टाइम पे दिस इज, वी नीड आवर इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी आइडम पोर्टेंट, आइडम एंड वर्ड यूज करने की कोशिश करना, ठीक है। यस असलम, यू हैव अ क्वेश्चन? Yes, Shehzad, this item potent, what you are saying is it related to automation? Yes, I mean, yeah, that's what I'm saying. It's not related to automation as in concept, but sorry, concept as in like some technical कुछ करना है इसके अंदर। आइडम पोर्टेंट लाइक इंग्लिश वर्ड है जहाँ पे, जिसका मीनिंग मैं समझा रहा हूँ कि तुम एक चीज जिस तरह से करते हो उसको सेकंड टाइम भी सेम। लाइक मैंने तुमको बोला है कि यूजर बनाओ, ठीक है, लिनक्स पे यूजर बनाने के लिए बोला, आज तुमने यूजर बनाया, कल को एक और सर्वर आता है मैं तुमको उस पर भी यूजर बनाने बोलता हूँ, एंड देन हम लोग बहुत सारे कस्टम फ्लैग पास कर रहे हैं, तो तुम क्या कर सकते हो, चांसेस आर वेरी हाई दैट यू मे फॉरगेट, और तुम्हारा अटेंशन, यू माइट गेट डिस्ट्रैक्टेड और तुम उसमें कुछ मिस कर दोगे। लाइक मैंने बोला है कि उसका फर्स्ट नेम भी होगा, लास्ट नेम भी होगा, यूजर नेम, पासवर्ड, उसका एक्सपायरी डेट, उसके मतलब ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दे दिया मैंने तुमको। एवरी टाइम यू आर डूइंग इट मैनुअली, यू आर बाउंड टू लूज द इंटरेस्ट बिकॉज वो टीडीएस हो जाएगा, एंड यू मे फॉरगेट समथिंग। तुम उसके फर्स्ट नेम को टाइपो कर दोगे या लास्ट नेम को टाइपो मार सकते हो, बिकॉज यू आर डूइंग इट एवरी टाइम मैनुअली। तो एवरी टाइम आई एम आस्किंग यू टू गो एंड क्रिएट द यूजर, देयर इज नो आइटम पोटेंसी इन योर वर्क राइट नाउ, क्योंकि यू आर नॉट गारंटी, तुम्हारा गारंटी नहीं है, बिकॉज यू आर ह्यूमन, इवन दो तुम बोलोगे कि मैं गारंटी दे रहा हूँ, बट स्टिल आई लाइक समथिंग, मैं भी इंसान हूँ, यू आर ऑल्सो ह्यूमन, आई एम ऑल्सो ह्यूमन, एंड आई कैन अंडरस्टैंड सम पॉइंट ऑफ टाइम यू आर बाउंड टू मेक दैट मिस्टेक, तो आई हैव टू मेक दैट रूम। एक तुमको एक रूम देना पड़ेगा, जहाँ पे लाइक आई हैव टू गिव यू लाइक कट यू सम स्लैक, लाइक इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है, दिस इज ह्यूमन, कटिंग सम स्लैक, लाइक छोड़ दो उसको, गलती होती रहती है इंसान से, तो यू कैन डू दैट। तो तुम्हारे मैनुअली करने में देयर इज नो आइडम पोटेंसी, यू कैन ऑलवेज मेक एनी मिस्टेक, यू कैन मेक टाइपो, तुम फर्स्ट नेम लास्ट नेम में डाल सकते हो, एक्सपायरी डेट कुछ भी कर सकते हो, वहां पे टाइपो वहां हो सकता है, तो दो सॉर्ट ऑफ थिंग विल हैपन। तो जब मैं तुमको बोल रहा हूँ कि जाके मैनुअली यूजर बनाओ, तो तुम्हारे इसमें आइडम पोटेंसी नहीं है, देयर इज नो वे दैट यू कैन गारंटी मी दैट कि तुमने हर बार सेम यूजर बनाया विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक, राइट? सो आइडम पोटेंसी इज मोर लाइक कंसेप्ट एज इन जस्ट अ वर्ड है जो यूज हो रहा है कि गारंटी देना है हमको। तो आईटी में ये वर्ड बहुत, अब आईटी ने बहुत सारे वर्ड उठा लिए दूसरी इंडस्ट्री से, लाइक आर्किटेक्ट है जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज होता था, अब आईटी वालों ने उठा के ले लिया है, तो मतलब बहुत यूज होता है ये है। फिर याक शेविंग है, मतलब आगे हम लोग और दो तीन वर्ड दिखाऊंगा मैं जो कि टिपिकल सिचुएशन होती है, तो बहुत सारे जो वर्ड है जो बड़े बड़े मतलब ये गवर्निंग बॉडीज है, ये बी जो बर्कली यूनिवर्सिटी वगैरह है और एमआईटी है, तो दे आर लाइक जैसे डिक्शनरी रहती है ना ऑक्सफोर्ड की, तो वैसा आईटी की भी रहती है, तो ये लोग टर्म लेते रहते हैं और वो टर्म का लोग डेफिनेशन बना देते हैं एंड पब्लिश हो जाता है, फिर हर कोई यूज करता है। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि ज्यादातर अपने आप को और तुम अपने आप को प्रोफाउंड और अच्छा प्रोफेशन बनाना है इन ऑर्डर टू द टेक्निकल टर्म्स, यू शुड गो एंड वॉच द वीडियोस बाय दीज पीपल, लाइक सीनियर पीपल, जो समिट्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस होते हैं, यूट्यूब पे पब्लिश किए जाते हैं सारे, उनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल रहते हैं, दे कम एंड दे टॉक अबाउट द प्रोडक्ट एंड हाउ दे आर यूजिंग इट, बट
maybe you not abhi ke time pe you may not understand what they're talking about, but one thing you can understand is their English, how they are actually talking and how they are, what kind of word they are using, and how they are actually constructing their sentences as well. Because presentation is always important. अब जो मैं day one से बोल रहा हूँ, presentation is more important than what you are doing. तुम कर लो, लेकिन you should be able to present what you have done. And if you can do both, then you are like you have a killer combination, and then you'll be like in lot of demands. बट सर्वाइवल के लिए तुमको दोनों चाहिए. अगर प्रेजेंटेशन आता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज टेक्निकल पे भी तुम सर्वाइव कर सकते हो. लेकिन यू नो आई मीन इफ एनीबॉडी हैज वर्कड यू विल अंडरस्टैंड कि अगर बोलने ही नहीं आता है तो फिर ये नहीं हो जाता. जिन जो बोल के दिखाता है वैसा ही दुनिया चल रही है. तो राइट, सो प्रेजेंटेशन मैटर्स. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ दे आर एक्चुअली किस तरह से दे आर पुटिंग देयर आइडिया अक्रॉस. यू विल आल्सो गेट एन आइडिया कि वो लोग किस तरह से बातें करते हैं. इफ दे वांट टू टॉक द सेम थिंग, हाउ दे आर यूजिंग. ठीक. तो दैट आइटम पोटेंसी यू कैन नॉट गेट डूइंग मैन्युअली. इट्स समथिंग यू कैन गेट बाय सम द मींस ऑफ प्रोग्राम्स. सो आइटम पोटेंसी वी कैन गेट ऑटोमेशन से हम लोग कर सकते हैं. लाइक मैंने ऑटोमेट कर दिया किसी चीज को, तो आई कैन गारंटी यू दैट एवरी टाइम इट विल हैपन सेम. And again, not every automation can guarantee us this. Like shell script, definitely not, because shell script is not intended to do that. But scripting is what we going to start our journey for the automation journey. And my point was कि this is something now sysadmins cannot avoid. अभी ट्रेडिशनली ऐसा रहा है कि नहीं, हम लोग डेवलपमेंट नहीं करेंगे. सिसएडमिन वालों का ऐसा, ये सिसएडमिन की दुनिया मतलब यहाँ पे तुम कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर को बिठा सकते हो. मतलब यू कैन सिस एडमिन, व्हेन आई से आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट एनी एडमिनिस्ट्रेटर, चाहे वो डीबी हो चाहे वो एप्लीकेशन का हो. उसकी पोजीशंस अलग अलग नाम से बोली जाती है, लाइक एसआरई, डेवऑप्स इंजीनियर, प्लेटफॉर्म इंजीनियर, सॉफ्टवेयर, क्या क्या अलग अलग नाम रहेंगे. बट यू हैव दैट, ये जो थिक लाइन है यहाँ पे कि वो कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग की प्रोग्रामिंग करेगा यहाँ पे. तो ज्यादातर वो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रहता है, जो प्रोग्रामिंग होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जिसको ऊ बोला जाता है. एंड वहां पे तुम्हारा एनकैप्सुलेशन क्लासेस और वो जो चीजें रहती है, दैट एक्चुअली इज नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एज वेल. दैट यू नीड सम एक्स्ट्रा बिट ऑफ मतलब ज्यादा थोड़ा उसको. एंड इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस. ऐसा भी नहीं है कि एकदम से रॉकेट साइंस है. इवन रॉकेट साइंस भी रहता तो दो इंसान ही करते हैं, दे आर नॉट लाइक एलियंस. तो यू शुड थिंक दैट वे कि वो भी इंसान कर पा रहा है रॉकेट साइंस, तो मैं क्यों नहीं करूंगा. दैट्स अबाउट रॉकेट साइंस, बट दिस इज नॉट इवन रॉकेट साइंस, राइट. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी, इट्स नॉट लाइक यू कैन नॉट डू, यू कैन डू इट. तुमको इंटरेस्ट चाहिए एंड तुमको प्रैक्टिस चाहिए, दैट्स ऑल. एंड हियर जो यहाँ पे हमारा रहेगा, यहाँ पे जो हम लोग ज्यादातर करेंगे, विल डू स्क्रिप्टिंग एंड टेम्पलेटिंग. ठीक है. तो सिस एडमिन के लिए, क्योंकि सिस एडमिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं करता है, तो इसलिए उनके लिए जो टूल्स आ गए हैं वो सारे स्क्रिप्टिंग वाले टूल्स हैं. तो ऑल यू हैव टू नो इज स्क्रिप्टिंग एंड टेम्पलेटिंग. तो अगर कंपैरिजन करोगे तो अगर ये 10th का मैथ्स है तो ये 4th और 5th स्टैंडर्ड का मैथ्स कर रहे हैं हम लोग. एंड दैट्स ऑल वी नीड टू डू, बिकॉज अगेन डेवलपर ने टूल्स बना दिए हैं हमारे लिए, एंड वो टूल्स को हमको यूज करने के लिए देयर इज अ वे टू डू दैट. एंड ये इसमें इस तरीके से ये होगा. Okay, I see one hand, Abdul. Yes, go ahead. Sir, actually, I want to know about this. Like OOPS, like we will do OOPS in Java or like Python. Like, is there any language foundation over there? ये तो देखो, I mean what we are discussing, this is not even we. हम लोग सिर्फ तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, ये हम लोग करने वाले ही नहीं. ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ इसको. और ये तो हम लोग बस स्टार्ट करेंगे, बट हमारा यहाँ पे सिस एडमिन्स, यहाँ पे हम लोग डेवऑप्स. तो हमारा जो डेवऑप्स है, अलग अलग नाम से मैं बता रहा हूँ कि इट कैन बी एप्लीकेबल टू एनी एडमिनिस्ट्रेट. ये वर्ल्ड, हम लोग ये वर्ल्ड में है, दिस इज आवर वर्ल्ड. ये वर्ल्ड हमारा नहीं है, जस्ट कंपैरिजन के लिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रोग्रामर्स ये करते हैं. आई एम गिविंग द आंसर टू एवरीवन. ठीक है, तो तुम यू कैन म्यूट इफ यू आर डन विद योर क्वेश्चन और यू गॉट द आंसर. बट तुमने क्वेश्चन पूछा है, तो अभी मैं उसको आंसर थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, विच विल बी बेनिफिशियल फॉर अदर्स एज वेल. सो डेवलपमेंट में जो प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. एंड हम लोग जो प्रोग्रामिंग करेंगे, विच वोंट बी लाइक अ प्रोग्रामिंग लाइक दिस, जो डिफिकल्ट रहती है, जिससे डर लगता है, वो ऐसा नहीं रहेगा. हमारी प्रोग्रामिंग पूरी जो रहेगी, इस it will be around this. So they do their automation in object oriented programming languages. We will do our automation with scripting and templating.
तो लाइक आई सेड, अगर ये 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स है जो कि हार्ड रहता है, राइट, बोर्ड का मैथ्स रहता है, तो ये तुम्हारा 4th और 5th स्टैंडर्ड का मैथ्स है। तो अगर अभी, लेकिन हम तो 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स नहीं करते, तो इसलिए हमारे लिए तो दोनों डिफिकल्टी होगा, 4th भी, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं। लेकिन कोई डेवलपर अगर करेगा ना, तो उसके लिए बहुत ईजी है, क्योंकि डेवलपर ऑलरेडी डिफिकल्ट चीज में काम कर ही रहा है, जो कोडिंग कोडिंग है। तो यहाँ पे भी कोड करना ही है हमको, बट वो कोड सिंपल रहेगा, वो कोड इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा जैसा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में रहता है। एंड टेम्पलेटिंग और स्क्रिप्टिंग करेंगे, एंड एक्चुअली दे आर, ये भी जो है ना सारे टेम्पलेटिंग स्क्रिप्टिंग, ये भी डेवलपर नहीं लिख के दिया है हमको। तो वी आर हेविली रिलाइंग ऑन एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ, चाहे वो CLI हो, चाहे वो स्क्रिप्ट हो, चाहे वो टेम्पलेट हो, सब डेवलपर ने ही लिख के दिया है, तभी हम लोग कर पा रहे हैं। बिकॉज देर इज लाइक ऑलवेज दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिहाइंड ऑल ऑफ दिस। जो हमारे टूल्स रहेंगे हम लोग यूज करेंगे, वो किसी एक प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में लिखा हुआ रहेगा। एंड सिस एडमिन्स के लिए एक इंटरफेस दिया जाएगा, जो लाइक YAML रहेगा, और YAML जैसे अलग अलग जो ये रहते हैं, तो टेम्पलेट वो देखेंगे हम लोग। तो दैट्स मोर टू आगे आगे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि ये चीज है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड कंसेप्चुअल, बट हम लोग करने वाले नहीं है, हम लोग ये करने वाले, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी विल बी डूइंग। एंड UI तो लाइक बहुत इजी है, UI में सब कुछ मैनुअली करना रहता है, देयर इज नो ऑटोमेशन हियर। अब ऑटोमेशन पॉसिबल किससे हो रहा है ना, वो क्लाउड से हो रहा है। लाइक क्लाउड में ये कंपनी है, लाइक Amazon इज द कंपनी, और यू कैन थिंक ऑफ एनी अदर कंपनी, ये Amazon ने दिया है। Amazon क्या करता है, ये Amazon ने APIs यहाँ पे रखा हुआ है। अब उसको समझने के लिए ना जोमेटो या स्विगी का एग्जांपल तुम ले सकते हो। मतलब API समझने का सब में जो बेस्ट तरीका है, दैट इज, होटल में जाते हो, मेन्यू देते हैं, एंड दैट मेन्यू इज नथिंग बट अ API। API में क्या रहता है, दे जस्ट वो लोग एक्सपोज करेंगे कि हमारी इस सर्विस को किस तरह से यूज करना है। होटल वाले क्या करते हैं, तो वो एक्सपोज करते हैं कि तुमको ये खाना ऑर्डर करना है, तो कैसे ऑर्डर करोगे, मेन्यू में देखो, बोलो। वो लोग ने क्या रेसिपी यूज कर रहे हैं वो तुमको नहीं बताएंगे, कि हमने नमक इतना डाला था, मिर्ची इतना डाला था, ये इतना डाला था, बिकॉज दैट्स द सीक्रेट वेपन। तो वो रेसिपी तुमको नहीं पता रहेगी, कि हर होटल की स्पेशलिटी डिश रहती है, वो लोग कितना क्वांटिटी में क्या करते हैं कोई नहीं बताने वाला। वो लोग क्या करेंगे, तुमको मेन्यू दे देंगे, एंड दैट मेन्यू इज नथिंग बट API। यहाँ पर वो API क्या रहेगा, वही रहेगा। तुमको बस ये सर्विस, लाइक मुझे EC2 इंस्टेंस बनाना था, तो उसका API रहेगा। तो यहाँ पे मैं ये लिखता हूँ तुमको समझने के लिए। तो API जो रहेगा ना, ये सारे मतलब यहाँ पे ये अंदर में इनका कोड रहेगा कहीं पर, जो कोड जाके क्या करेगा, वो बनाने वाला रहेगा, ये कोड रहेगा जो EC2 इंस्टेंस बना के हमको दे देगा। क्लाउड में वही हो रखा है। अब यहाँ पे पूरा कोड है उनका एक्चुअली, जो कोड उनका बैकएंड में करता है, और फिर एंड में क्या हो जाता है, हमको यहाँ पे एक हमारा EC2 इंस्टेंस दिखाई देता है, ठीक है, बनने के बाद में। अब इसको हम लोग ये EC2 लिख देता हूँ, या फिर कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, GC का ले लो, VM का ले लो, ACVM का ले लो, मतलब यू कैन थिंक, सब कंसेप्चुअली ऐसे ही काम हो रहा है, तो कुछ भी तुम्हारा समझो बन गया। अब ये API को इंटरैक्ट करने के लिए क्लाउड वालों ने क्या कर रखा है, उन लोगों ने हमको रैपर बना बना के दिया है। तो यहाँ पे क्या होता है, लाइक एक UI से हम लोग कर रहे हैं, तो पहला जो हम लोग इंटरैक्शन करते हैं UI से कर रहे हैं, तो ब्राउजर क्या कर रहे हैं, तो UI से भी मतलब क्या होता है, API कॉल्स ही होते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा रहता है CLI से हम लोग कर सकते हैं। CLI में भी क्या रहता है, हमारे लिए पूरा प्रोग्राम बना हुआ रहेगा, और इंस्टेड ऑफ यूजिंग ब्राउजर एज अ क्लाइंट, हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसा ये करेंगे, और वो भी API कॉल ही करेगा। एंड अगर तुमको कोई प्रोग्राम आता है, तो API जो रहता है, तो लाइक तुमको अगर कुछ किसी प्रोग्राम आएगा, तो उसके अंदर में तुम कर सकते हो। तो उसके लिए तुमको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, और उसके लिए भी तुम API से काम करना, मतलब यहाँ पे बेसिकली कोई लैंग्वेज लिखना है, एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा बताया जाता है, और ये जाके वो कोड इन्वोक करेगा, और वो कोड जाके तुम्हारा EC2 बना देगा, और जो तुमको दिखाई देगा। तो दैट्स द वे काम हो रहा है। तो ऑटोमेशन जो है ना, वो आ गया है नाउ, समथिंग यू कैन नॉट अवॉइड, तुमको ऑटोमेट करना पड़ेगा, बिकॉज API यहाँ पे दी गई है। अब दिस इज लाइक मैनुअल, दिस इज ऑल्सो मैनुअल, यू कैन एक्चुअली यूज स्क्रिप्टिंग, बट स्क्रिप्टिंग जो है, इट्स नॉट आइटम पोर्टेंट, ठीक है।
मतलब सिस एडमिन में लिखा था जो मैनुअल जो करना रहता है वो आइटम पोर्टल नहीं है। तो बहुत सारे अभी टूल्स आ गए हैं जो आइटम पोर्टेंसी हमको देते हैं, एंड वन ऑफ द टूल जो है हमारा जो टेराफॉर्म रहेगा। तो टेराफॉर्म जो टूल है वो आइटम पोर्टेंट है, उसके बाद में एंसिबल है, सॉल्ट स्टैक है, पपेट शेफ, ये सारे भी हैं। तो ये जो है इनकी एक अलग लिस्ट बनाता हूँ, दे आर सेम। पपेट तो यूज नहीं होता आजकल, शेफ यूज होता है, एंड उनमें भी ये रहता है, इसमें उलूमी एक है, ठीक है। तो ये सारे टूल्स रहेंगे, एंड ये टूल्स में हमको टेम्पलेटिंग, ये टूल्स में कुछ नहीं करना है, दीज आर, यहाँ पे किसी को कुछ कोड यूज नहीं करना है, ऑल यू हैव टू डू टेम्पलेटिंग। और शेफ में थोड़ा सा करना पड़ेगा बिकॉज वो रूबी में लिखा हुआ है, रूबी अलग इसमें जा रहा है। तो रूबी का भी बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग है, मतलब वो सिस एडमिन नहीं बना है, क्योंकि स्क्रिप्टिंग में क्या था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं कर सकते थे। वो जो एक जापानीज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर था, ही वाज लाइक गुड विद द डेवलपमेंट, और उसने सीख लिया था। लेकिन वो सिस्टम एडमिन था, उसको सारी चीजें समझती थी, नेटवर्क क्या है, वॉल्यूम क्या क्या रहता है, किस तरह से अटैच करना, यूजर क्या कैसे क्रिएट करना, बिकॉज ये सारी चीजें डेवलपर को नहीं पता रहती। जो भी हम लोग अभी चीजें कर रहे हैं ना, जितनी भी हमने किया अभी तक, कि सर्विस क्या रहता है, पैकेज किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, डेवलपर, लाइक नॉट ऑल डेवलपर विल नो, लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपर को ही पता रहेगा। वैसे ही हर सिस एडमिन प्रोग्रामिंग जाके नहीं करेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिस एडमिन ही करेगा। तो एक जापानीज से था, उसने रूबी बना दिया था, जो कि स्क्रिप्टिंग ही थी, लेकिन वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी सपोर्ट करना स्टार्ट उसने उसने ऐड कर दिया था। तो ही एंडेड अप क्रिएटिंग हिज ओन लैंग्वेज रूबी, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है सिस एडमिन वर्ल्ड में। लेकिन आजकल पाइथन का ज्यादा चल रहा है। तो दीज आर द वंस जो हमारा आइटम इम्पोर्टेंट है, और इसके अंदर में कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों है, स्क्रिप्टिंग एंड टेम्पलेटिंग, विच वी विल सी आगे। So why I'm actually saying this, because this has become the need of the hour or current situation, because everything is happening via API। और हर कंपनी क्या कर रही है, खाली API के एडमिन्स चाहिए अब, जो API को सिक्योर कर सके, API के अलग अलग ये है। तो that is like a different job opportunity in itself, like all organization wants to create their application and expose their services through APIs to their consumers। अब हाँ, कोई भी एक कंपनी अगर एप्लीकेशन बना रही है तो उनका कोई कंज्यूमर रहेगा तभी एप्लीकेशन बनाएगी, नहीं तो उसको बना के कुछ फायदा नहीं है। तो उसका इंटरनल यूज हो सकता है या एक्सटर्नल यूज हो सकता है। नाउ इट्स अबाउट हाउ यू गोना एक्सपोज इट टू द वर्ल्ड, राइट। तो अभी बहुत कॉमनली एपीआई से हो रहा है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ सिक्योरिटी एंड यू डोंट नीड टू एक्सपोज द कोड, एंड यू मेक इट लॉट इजी फॉर द यूजर्स एज वेल। लाइक क्लाउड के केस में हमारे पास हो रहा है, क्लाउड में वीएम बनाना एकदम मतलब चाइल्ड्स प्ले हो गया है, राइट। मतलब यू जस्ट हैव टू नो द स्टेप्स। तो यूआई से हमने बनाया है, तो यूआई से देखा तुमने कितना आसानी से हो गया। अब द अदर थिंग इज कि तुमने डिफिकल्ट चीज कभी देखी ही नहीं, तो इसलिए यू मे नॉट अप्रिशिएट कि हाउ इजी हैड दिस हैज बिकम। बट इफ यू न्यू द डिफिकल्ट राउट, तो तुमको समझ में आता था कि कितना मतलब चीजें आसान हो गई। तो those are all happening with the API, and API is the future, और API is the currently going on as well। and अगर तुमको survive करना है इस वाले वर्ल्ड में, तो you have to तुमको कुछ लेवल की ऑटोमेशन आनी चाहिए। and good thing ये हुआ है कि like architects and people who have grown up to like admin level से, जो admin rank से जो grow हुआ है, like any sys admins might have become a CTO, like top level organization position, और जनरल और डायरेक्टर और एडी मैनेजमेंट और लीडरशिप लेवल की पोजीशन में अगर वो जाता है, तो ही वुड अंडरस्टैंड द पेन, बिकॉज वी कैन नॉट इन्फोर्स ऑन एडमिन टू डू दिस प्रोग्रामिंग। तो दे हैव केम अप विद द आइडिया। और बाकी बाय द वे ये सारे ओपन सोर्स टूल है, ये लाइक तुम भी कर सकते थे, मतलब तुम भी कर सकते हो आगे। जो भी चैलेंज है अभी, टेराफॉर्म वाले की हिस्ट्री तुम जाके देखोगे तो वो दो कॉलेज फ्रेश आउट से, कॉलेज मतलब वो लोग फ्रेश आउट थे, उन्होंने देखा कि ये चल रहा है। दिस इज लाइक 2010-11 की बात है जब उन्होंने बनाया था टेराफॉर्म। तो उन्होंने वही देखा कि एवरीबडी, अभी क्लाउड आ रहा है, क्लाउड में सारे एपीआई सब कुछ ऑटोमेशन से होगा। डेवलपर क्या कर रहे हैं, वो तो डेवलपर के लिए ही था ऑटोमेशन, क्योंकि वो यहाँ से लिख के कर दे रहे थे। सीएलआई से है, वो क्लाउड वाले बना के देते हैं, तो यू कैन डू दैट। तो उन्होंने एक ऐसा क्योंकि सीएलआई से करोगे तो यू हैव टू डू स्क्रिप्टिंग, ठीक है, तुम्हारी खुद की नेटिव स्क्रिप्टिंग करनी पड़ेगी। अगर तुम लिनक्स पे हो तो सॉरी लिनक्स पे हो तो बैश करो, और अगर विंडोज पे हो तो पावर शेल करो। तो तुमको स्क्रिप्टिंग वैसे तुम कर सकते हो, बट दिस इज नॉट रोबस्ट। तुमको अगर उसको रोबस्ट और आइटम पोर्टेंट बनाना है, तो तुमको हजार हजार लाइन के कोड लिखने पड़ेंगे। मतलब रोबस्ट एक दूसरा वर्ड जो यूज किया हूं मैंने अभी। रोबस्ट का मतलब है वो एकदम उसको कहीं से भी कितना भी पटको थटको तो वो बराबर से चलेगा, मतलब टूटेगा फूटेगा नहीं। तो उसका मतलब ये है कि
हर एंगल से, लाइक मैंने यूजर क्रिएशन वाला दिया था कि यूजर क्रिएट करो, व्हाट इफ यूजर इज ऑलरेडी क्रिएटेड, यूजर क्रिएट रहे तो तुम्हारी स्क्रिप्ट जाके फेल हो जाएगी, तो उसका मतलब है तुम्हारी स्क्रिप्ट रोबस्ट नहीं है, उसने वो सिनेरियो हैंडल ही नहीं किया। तो तुम क्या करोगे कि अच्छा ठीक है, अब इसमें एक सिनेरियो हैंडल करो, एक इफ कंडीशन लगाओ कि भाई पहले चेक करो यूजर इंस्टॉल है कि नहीं, अगर नहीं है तो ही इंस्टॉल करेंगे हम लोग। तो वो तुमने एक लेवल से बना, फिर बाद में पता चलता है कि यूजर ऐड तो था लेकिन उसके कुछ जो प्रॉपर्टीज थे वो सेट नहीं थे बराबर से, उसका एक्सपायरी डेट बराबर नहीं था, तो तुम्हारी स्क्रिप्ट ने ये तो किया नहीं, तो अगेन इट वाज नॉट रोबस्ट। तो तुमने अब वो सेकेंड एंगल आ गया, तो तुम वो सारे जो सिनेरियोस उसके अंदर हैंडल करते रहोगे तो वो रोबस्ट बनेगी, और वो कब, जब वो एकदम रोबस्ट बन जाएगी, बैटल टेस्टेड बोला जाता है जिसको, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा कि तुम्हारी स्क्रिप्ट 1000 लाइन की कन्वर्ट हो जाएगी और वो रहेगी शेल स्क्रिप्ट। एंड शेल स्क्रिप्ट में ऐसा है कि जिसके दिल में जो आएगा वो उस तरीके से करेगा। मतलब बहुत सारे हैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रैक्टिस विच यू शुड फॉलो एंड मेक श्योर कि विल टॉक अबाउट दोज लेटर, राइट। तो उसमें ऐसा है कि यू मेक इजी फॉर अदर्स। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमको यूज करना है हमारे वर्ल्ड में, बैटल टेस्टेड एप्लीकेशन, कुछ जो भी हम लोग टूल, कटिंग एज ये भी एक रहता है, कटिंग एज जो रहेगा वो कटिंग एज है, और जो लेगेसी हम लोग यूज करते हैं ओके। यस अब्दुल। सर एक्चुअली आई वांट टू नो अबाउट दिस पोर्शन, आवर पोर्शन, लाइक ये सिस्टम है जो अपना सिस एडमिन्स है, इसमें जैसे मुझे पाइथन इंटरमीडिएट लेवल तक आती है, तो विल इट बी हेल्पफुल फॉर दिस पोर्शन और नॉट? Yes, yes, it's very helpful. I mean, if you can do scripting in Python, you can do scripting in Ruby, you can do in Bash, PowerShell, JavaScript। ठीक है, तो स्क्रिप्टिंग करने के लिए जो हमारे पास में है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको आगे हटा देते हैं। तो अगर जिसको पाइथन आता है तो आई थिंक यू आर इन अ वेरी एडवांटेज, बिकॉज मैं बेनिफिट उसके बता देता हूँ, और बेनिफिट जब हम लोग टूल डिस्कस करेंगे ना तब, क्योंकि तुमको एंसिबल या सॉल्ट या शेफ यूज करना ही पड़ेगा। एंसिबल एंड सॉल्ट दे आर रिटन इन पाइथन, और अगर तुमको पाइथन आता है तो यू एक्चुअली हैव, तुमको एक एक्स्ट्रा लेवल का एडवांटेज आ जाता है, बिकॉज यू नो व्हाट इज गोइंग ऑन द अदर साइड। तो तुम कभी भी पीछे जाके देख सकते हो कि क्या हो रहा है, और स्पेशली दीज आर लाइक ओपन सोर्स, तो इसमें माइनर माइनर बग आते रहते हैं यहाँ वहाँ। तो तुमको पाइथन अगर आता है ना तो तुमको एडवांटेज है कि तुम जाके पीछे देख सकते हो कि किस तरह से उसको लिखा गया था, और तुम उसके हिसाब से फिर अपना चेंजेस कर सकते हो। तो एंसिबल करने के लिए तुमको पाइथन आने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर दिस इज फॉर एवरीवन ना, लाइक बाकी लोग को ऐसा लगे हमको तो नहीं आता है, हमने ट्राई किया था लेकिन हम सीख नहीं पाए। तो ये जितने भी टूल मैंने लिखा हूँ एक्सेप्ट टुलुमी, जितने भी टूल लिखा है यहाँ पे, और शेफ, ये दोनों हम लोग करेंगे भी नहीं अभी के लिए। टुलुमी का नाम सिर्फ इसलिए दे दिया हूँ क्योंकि ये आगे जाके आ सकती है, टेराफॉर्म का अच्छा कॉम्पिटिटर बन सकता है, लेकिन अभी जो मेन रहेगा टेराफॉर्म, एंसिबल, सॉल्स्टाइन। शेफ की जरूरत उतनी नहीं है, बिकॉज अगेन डेवऑप्स कर रहे थे हम लोग, आजकल गिटऑप्स चल रहा है, तो डेवऑप्स से भी हटके गिटऑप्स आ गया, इसलिए गिट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। गिट इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, मतलब नॉट जस्ट बिकॉज द गिटऑप्स चल रहा है आजकल, गिट इंपॉर्टेंट इसलिए कि जैसे द मोमेंट वी स्टार्ट राइटिंग द पंच ऑफ कोड, इतने सारे जब हम लोग कोड लिख रहे हैं, तो कोड लिखा है तो गिट आना ही चाहिए। मतलब हर डेवलपर को जाके बोलोगे ना तो यू डोंट नीड टू आस्क देम तुमको गिट आता है कि नहीं। मतलब मैं अगर कोई डेवलपर को हायर कर रहा हूँ तो उसको आना ही है, वो नहीं तो उसका फायदा ही नहीं है डेवलपमेंट करके। तो मतलब वो उनका ब्रेड एंड बटर जैसा है, समथिंग दैट एवरी डेवलपर शुड नो। ऐसा है, जो भी कोड कर रहा है उसको गिट आना ही चाहिए। अब हम लोग कोड स्टार्ट करेंगे तो इसलिए हमको भी गिट आना चाहिए। अब और गिट भी एकदम मतलब गिट ऐसा है कि तुमको टाइम ट्रैवल कराता है, राइट। अगर टाइम ट्रैवल मूवी के लिए तो हम लोग कितना एकदम अच्छे से ये करते हैं, यार कितना मतलब फैसिनेटिंग लगता है कि हाउ एक्साइटिंग इट इज, टाइम ट्रैवल वाली मूवी है, वो पीछे टाइम में जाएगा करेगा। गिट अपने से वही करवाता है। गिट अगर हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। तो ऐसा कोई मूवी के ऐसा एडवेंचरस एडवेंचरस रहेगा हमारे लिए, बट इट वोंट बी मे बी नॉट दैट अट्रैक्टिव फॉर एवरीवन। बट क्योंकि हमको उसमें कोड में पीछे जाना रहता है कि अगर हमने कुछ पीछे, लाइक मैंने पिछले हफ्ते कुछ किया था और वो मेरी स्क्रिप्ट चल रही थी, लेकिन ये हफ्ते मैंने कुछ चेंजेस किए और स्क्रिप्ट नहीं चल रही है, और मुझे मिल भी नहीं रहा है क्योंकि मेरी स्क्रिप्ट 500 लाइन की है। अब वो 500 लाइन में मैंने कहाँ पे क्या एक्सीडेंटल मिस्टेक कर दिया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं पीछे वर्जन पे जा सकता हूँ, लाइक मैं टाइम ट्रैवल कर सकता हूँ कि पिछले हफ्ते तो मेरी स्क्रिप्ट चल रही थी ना, चलो पिछले हफ्ते जाते हैं और देखते हैं वहां पे क्या था मेरा सिनेरियो। तो दैट वे ये करता है।
तो गेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग एवरीथिंग वी विल बी डूइंग कोडिफाई, मतलब जो वर्ड ऑटोमेशन जो करना है हमको सिस एडमिन का साइड में भी, तो एवरीथिंग नीड्स टू बी कोडिफाई, तो हमको सब इससे कोडिफाई करना है। और अगर जहाँ पे कोड आता है, चाहे वो टेम्पलेट हो चाहे वो स्क्रिप्ट हो, गेट का यूज करना बहुत जरूरी है। और स्क्रिप्टिंग में जो हमारे पास में है, जो ज्यादा कॉमन चलती है, तो जावा स्क्रिप्ट है करने। जावा स्क्रिप्ट ज्यादातर वेब डेवलपमेंट के लिए ठीक है, बट और बैश है, पावरशेल है, ऑपरेटिंग स्पेसिफिक, एंड देन these are like इंडिपेंडेंट है, ये पाइथन एंड रूबी। नोड भी है, लेकिन नोड में स्क्रिप्टिंग वगैरह नहीं होती। गो में भी कर सकते हो, जो है ना गो, दैट इज आल्सो मल्टीपर्पज लैंग्वेज हो गई है, सब कुछ कर सकते हो, सिक्योरिटी। तो पाइथन में तुम हर चीज कर सकते हो, एंड पाइथन में हर चीज इसलिए कर सकते हो क्योंकि किसी ने कोड लिख लिख के रख दिया है। वो हम लोग जब फंक्शन समझेंगे तो उसके अंदर तुमको समझ में आ जाएगा। मतलब मॉड्यूल, लोगों ने मॉड्यूल लिख के रख दिया, नेटवर्क का मॉड्यूल है, डेटा साइंस का मॉड्यूल है, एमएल का मॉड्यूल है, हर चीज के मॉड्यूल लिख दिया, तो तुमको कुछ भी कोड करने की जरूरत नहीं है, तुम बस वो मॉड्यूल लो और यूज करो। तो वो फंक्शंस में हम लोग, तुमको आइडिया आ जाएगा कि मॉड्यूल का क्या रहता है बेनिफिट। तो लोगों ने ऑलरेडी कोड बहुत सारा लिख लिख के रख दिया है, तो बस सेम वही कोड किया जा रहा है। वही कोड को मतलब हम लोग रियूज कर लेते हैं, इसलिए पाइथन बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है आज। और पाइथन एकदम आसान भी है, आसान एज इन इट्स रिलेटिवली इजी, इट्स नॉट लाइक वेरी इजी। नहीं तो ऐसा बोले कि सर तो बोल रहे थे पाइथन बहुत आसान है, बहुत आसान है, मैं कर रहा हूँ तो आसान ही नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लोगों ने बोला था जिनको कुछ नहीं आता था, इसलिए मैं वर्ड यूज करता हूँ रिलेटिवली इजी। मतलब जब तुम बाकी दूसरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इसको कंपेयर करते हो, तो जावा, सी प्लस प्लस, डॉट नेट, और जो भी मतलब है मार्केट में, नोड और भी होंगे, तो उनसे मतलब इजी है, ठीक है। तो कंपेरेटिवली जो क्योंकि पाइथन तुमको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी करके दे रहा है, गो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करके देता है, तो गो भी यहाँ पे आ जाता है। और भी बहुत सारे, मतलब आए दिन एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती रहती है, आईटी मतलब चलते रहता है, ठीक है। तो अपना वर्ड अभी नहीं है, तो हम लोग को उतना कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहेगा। हम लोग अभी यहाँ पे ये करेंगे, बिकॉज पावर शेल अगेन मार्केट हार्डली 10-20% है, राइट। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन में मे नॉट बी यूजिंग इट, मतलब विंडोज तो कोई ना कोई यूज करते रहेगा, ठीक है। somebody said YAML is not scripting. YAML जो है वो डेटा सीरियलाइजेशन है, दिस इज वेयर आई वाज टॉकिंग अबाउट टेम्पलेटिंग। तो YAML में जस्ट स्टैटिकली तुम डेटा स्टोर करके रख सकते हो, एंड इट वोंट डू एनीथिंग, इट वोंट इवन डू। स्क्रिप्टिंग में क्या होता है, तुमको कंडीशंस आती है, विल सी दैट YAML, JSON, जिंजा, और भी अलग अलग टाइप के, मतलब जो टेम्पलेटिंग में हम लोग यूज करेंगे, along with templating, जो static data serialization आती है, we'll see that JSON भी है, लेकिन JSON is not very easy on the eyes। तो हम लोग YAML यूज करेंगे, JSON YAML, they are like superset and subset of each other and they work in the same way। and then we have something called HCL as well। तो along with जो डेटा सीरियलाइजेशन में हम लोग को जो आना चाहिए ना, तो YAML आना चाहिए हमको, दैट इज, और HCL आना चाहिए। अभी हर चीज जो SCL में चले गया है, और ग्रूवी भी एक है, राइट। लेकिन वो जेनकिंस वगैरह, तो अभी जेनकिंस को यूज भी, मतलब यूज जेनकिंस का ऐसा हो गया ना कि वो खत्म खत्म एज इन लोग रिटायर कर रहे हैं उसको, दे आर गोइंग, पीपल आर मूविंग अवे फ्रॉम जेनकिंस। और जेनकिंस एक ऐसा बचा हुआ हमारे डेवऑप्स में, जो यामल सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, बट वो अकेला ग्रूवी यूज करते रहता है। तो ग्रूवी करके एक है, उसमें भी होती है, लेकिन हमने ऐसा क्यों करेंगे जो सिर्फ एक ही स्पेसिफिक है, क्योंकि जेनकिंस पहले 8 साल पहले, या 6-7 या 5 साल से, 5 साल भी बोल सकते हैं, बट 5 साल पहले ही लोगों ने खत्म कर दिया जेनकिंस को। मोस्ट ऑफ द कंपनी दे आर मूविंग आउट अवे फ्रॉम जेनकिंस, बिकॉज वो अकेला ही, वो सिर्फ कुछ कुछ ही उसके कैपेबिलिटीज है, समथिंग विल सी दैट व्हाई पीपल आर मूविंग अवे फ्रॉम जेनकिंस। तो वहां पे ग्रूवी है, तो इसलिए हम सिर्फ वहीं पे वो लिमिटेड है, तो वो करने की जरूरत नहीं है। हम ऐसी चीज करेंगे जो जो सब जगह पे सपोर्ट है, लाइक तुम बाकी पाइपलाइंस हम लोग जब लिखेंगे, जो दूसरे टूल्स रहेंगे, सब यामल बेस्ड पाइपलाइन हो जाती है, तो ये करने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ से ये करेंगे। अगर तुमको इस डेव सेकॉप में करना है, तो तुम जावा स्क्रिप्ट कर सकते हो, बिकॉज ज्यादातर वेब एप्लीकेशन रहती है, और तुमको जावा स्क्रिप्ट जितना अच्छे से आएगा तुम उतना चीजें कर सकते हो, तो वो रहेगा। और ये दोनों हम लोग करेंगे, ठीक है। और एक यहाँ पे ये आ जाता है, एक जो टेम्पलेटिंग में है, जिंजा आ जाता है। और जिंजा
जिंजा भी है और दूसरे भी बहुत सारे हैं। तो जिंजा ज्यादा कॉमन है और द बेनिफिट ऑफ जिंजा इज ये यहाँ पे भी यूज होता है, यहाँ पे भी होता है एंड कुबरनेटिस में भी होता है। तो कुबरनेटिस और हेल्म वगैरह भी है। तो अभी सारे टूल लिख के मैं ओवरवेल नहीं करता हूँ। हम लोग अभी जो हमारा फोकल पॉइंट है दैट इज गोइंग टू बी ऑन बैश, बट समथिंग आगे आएगा। ठीक है, गिट और ये तो बहुत इजी है। यामल तो मतलब बहुत ही ज्यादा इजी है, तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बैश करके यामल करोगे तो तुमको लगेगा कि यार कुछ है भी नहीं। यामल में कुछ कुछ भी नहीं है, डेटा स्टोर करता है वो स्टैटिक वे में। इज जस्ट अ स्टैटिक डेटा सीरियलाइजेशन। तुम बस सीरियल वे में डेटा स्टोर कर दो, दैट्स इट। इट वोंट डू एनीथिंग एट ऑल। वो मतलब कुछ भी उसके अंदर में कुछ कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इफ कंडीशन रन करेगा, लूप रन करेगा, जैसे हम लोग बैश में देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग काम करते हैं, बैच देखते हैं। इनफ ऑफ द थोड़ा मतलब बैकग्राउंड जो तुम लोग को थोड़ा आइडिया आ जाएंगे। हम लोग स्टार्ट विद दिस स्क्रिप्टिंग। ठीक है, तो हम ये करेंगे बैच बिकॉज वी आर ऑन लिनक्स। पावरशेल भी तुम कर सकते हो एंड सिमिलरली पावरशेल थोड़ा सा मतलब है उसमें कैपेबिलिटीज कंपेयर टू बैश थोड़ी ज्यादा है। तुम ज्यादा चीजें कर सकते हो, मतलब बैश से ज्यादा चीजें हो पॉसिबल है उसमें। ठीक है, तो हम लोग बैच में स्टार्ट करते हैं। लेट मी लॉग इन टू माय सर्वर। अब इसका ठीक है, सर्वर कैसे बना है अगर कोई नए लोग नहीं समझ में आ रहा है तो हमने ऑलरेडी बना रखा है मैन्युअली जाके इसको। ठीक है, तो और उसको बहुत ही अच्छा डिटेल में हमने बनाया, तो वी शुड गो एंड वॉच दोस। The other problem is I don't remember the keys कहाँ पे रखा हूँ मैंने इसको। ये सबसे so let's try to use this. ठीक है, चलो अभी इसमें आ जाता हूँ मैं। अभी फिलहाल के लिए हम लोग CLI पे ही कर लेंगे, बट नॉर्मली व्हेनेवर यू डू द स्क्रिप्टिंग यू शुड यूज सम आईडी। इफ यू रिमेंबर क्लाउड शेल में गूगल हमको बार बार वो टेक्स्ट एडिटर दे रहा था, तो आईडी में मतलब ज्यादा कन्वीनियंट रहता है, ज्यादा मतलब इफिशिएंट भी रहता है यूज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टरी बनाता हूँ, इसको हम लोग बोलेंगे स्क्रिप्टिंग। ओके, सो समय लाइक सबसे मतलब पहली चीज जो लिनक्स में हर फाइल का मतलब नाम रहता है और लिनक्स की शेल स्क्रिप्ट का भी नाम रहता है, एंड दिस नेम एक्चुअली डजंट मैटर। हम लोग नाम कुछ भी दे सकते हैं उसके अंदर में। ओके, दिस इज वन क्वेश्चन। सीक्वल सीक्वल हम लोग विल यूज इट, लेकिन जितना हमको आना चाहिए उतना यूज करेंगे एंड विल ओनली अंडरस्टैंड फ्रॉम द यूज केस पॉइंट ऑफ व्यू। सीक्वल में ऐसा है कि जिसको सीक्वल एक्सपर्ट है वो डीबीए उसको बोला जाता है, जो सीक्वल एडमिनिस्ट्रेटर होगा या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होगा दैट पर्सन विल नो। वो उसका वो अभी वो ऐसा होगा कि एप्लीकेशन स्पेसिफिक हो गया या फिर डेटाबेस जो है, डेटाबेस वी कैन कंसीडर और वी कैन एक्चुअली जनरलाइज इट एज अ एप्लीकेशन। तो वो उस एप्लीकेशन का एडमिन हो गया। वी आर नॉट गोइंग टू बी एनी स्पेसिफिक। हमारे लिए कोई सी भी एप्लीकेशन ला के दो, हम लोग तुमको उसको ऑटोमेटेड वे में इंस्टॉल करके और उसको पूरा कॉन्फ़िगर करके उसका पूरा आर्किटेक्चर डिजाइन करके हम लोग दे देंगे व्हाट योर एप्लीकेशन वुड नीड। चाहे वो कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है, तो वो डेटाबेस होगा तो विल फॉलो डेटाबेसेस की जो चीजें रहती है कि डेटाबेस को रन इंस्टॉल करने के लिए तुमको ओएस को इस तरह से ट्यून करना है, ओएस ट्यूनिंग रहती है। तो वो सारी चीजें मोस्टली रहेगी हमारी। तो भी हमारे लिए वी आर नॉट एसोसिएटिंग आवरसेल्फ टू एनी पर्टिकुलर एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के। हम लोग सिर्फ यही एप्लीकेशन भी हमको आता है, बाकी चीजें नहीं आएगी। तुम क्योंकि हर कंपनी क्या कर रही है, सब अपने अपने एप्लीकेशन ला रही है, बिकॉज जो जो कॉमन एप्लीकेशन थी ना वो क्लाउड ऑलरेडी तुमको दे ही रही है। मतलब जो डेटाबेस जो है अभी कोई क्लाउड वाला दे देता है डेटाबेस, वो क्लाउड एडमिन करके दे देता है। मतलब एडमिन का काम जो है तुम RDS यूज कर सकते हो।
You don't need to worry about the infrastructure. You don't need to worry about patching, upgrading, security, tuning, database को क्या करना है. तुम जस्ट अपनी एप्लीकेशन में यूज करो उसको. तो जो एडमिन काम किया करता था ट्रेडिशनली वो चले गया. तो हर चीज में ऐसे ही हो रहा है कि जहाँ पर एडमिन मतलब क्लाउड वाला कर रहा है तो वो एक्स्ट्रा चार्ज भी लेगा वो. तो जब तुम माई सीक्वल का डेटाबेस आरडीएस में करते हो या क्लाउड सीक्वल में गूगल में करते हो उसका प्राइस, और अगर तुम माई सीक्वल का डेटाबेस EC2 पे इंस्टॉल करते हो तो तुम अगर कंपेयर करोगे तो प्राइस विल बी लाइक 4 और 3 टाइम्स डिफरेंस रहेगा. अगर अगर हमने माई आरडीएस यूज कर रहे हैं हम लोग आरडीएस या क्लाउड सीक्वल और ये अजोर सीक्वल, मैं सारे नाम बार बार इसलिए लिख देता हूँ ताकि तुमको पता रहेगा कि बाकी क्लाउड पे चीजें सेम है, खाली नाम अलग अलग करके बेच रहे हैं. तो यहाँ पे अगर मैं ये यूज करता हूँ, इफ आई टेक अ माई सीक्वल इंस्टेंस, माई सीक्वल टाइप आरडीएस क्या है, ये सर्विस है और वो बेच रहा है अलग अलग टाइप की. माई सीक्वल उसमें है, ओरेकल है, पोस्टग्रेस है, डेटाबेसेस है. विल हम लोग देखेंगे डेटाबेसेस का भी आगे, बिकॉज वी वोंट बी स्पेंडिंग दैट मच टाइम, क्योंकि ज्यादातर जो एप्लीकेशन आ रही है वो मैनेज्ड सर्विसेज में चले जाती है. और ज्यादातर डेवऑप्स में रिक्वायरमेंट आजकल हर कंपनी का यही है कि जो चीजें आसानी से हो रही है क्यों हम लोग उसके अंदर, क्योंकि क्या होगा कि माई सीक्वल अब AWS ने जो माई सीक्वल के एडमिन्स हायर किए होंगे दे विल बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि उनका इंटरव्यू प्रोसेस अलग है. दे आर एक्चुअली टेकिंग द अश्योरिटी. तो आई एम नॉट ट्रस्टिंग द एडमिन who will be doing the work behind the scene, but I'm trusting AWS to do the job better. मैं एज अ कंपनी अगर DBA हायर करता हूँ, 60-70% profiles are fake in the market right now. I may not be hire the right person. वो पर्सन अगर एक कॉल मतलब 3 महीने अगर उसको स्टडी करेगा आ जाएगा, लेकिन जब वो प्रोडक्शन में आएगा तो he won't be able to handle the heat. But somehow some way he may survive, but I'm not getting the value for the money, right? तो वो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, हाँ चलो मैनेज सर्विस में कर लो. गूगल ने हायर किया है बंदा तो ऑफकोर्स वो बंदा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, तो एडमिन काम वहां से करो. तो हर चीज का जो, तो क्लाउड वाले क्या कर रहे हैं, जो जो कॉमन एप्लीकेशंस मार्केट में यूज होती थी सब वो बेचना स्टार्ट कर दिया मैनेज सर्विस बोल के. तो सारी जो है यहाँ पे आ गई है. डेटाबेसेस डीबीएस के मतलब जॉब कम हो गए, ऐसा है. बट मतलब still organization need DBS, but it was not like it was 10 or 15 years ago. तो हर चीज में मतलब जो एप्लीकेशन स्पेसिफिक थे वो खत्म हो गए क्योंकि क्लाउड वाले स्टार्ट कर दिए. तो अपॉर्चुनिटी क्लाउड पर आ गई है और ये चीजों को ऑटोमेटेड वे में बनाने पे आ गई है. तो दिस इज वेयर हम लोग हमारा फोकस यहाँ पे डाल. तो अगर तुम माई सीक्वल आरडीएस में लोगे और अगर तुम माई सीक्वल सेम जो इसका ये कौन सा है मैनेज सर्विसेज है, इसको बोला जाता है मैनेज सर्विसेज. हम लोग देखेंगे इसको अच्छे से, और इसको या फिर पैस बोला जाता है. अभी मैनेज सर्विस जो है फैंसी वर्ड है इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि लोग पास करते रहते हैं तो एकदम एमेच्योर और फनी भी लगता है. तो उससे अच्छा यू शुड से मैनेज सर्विस एंड सेल्फ होस्टेड सर्विस. ये सेल्फ होस्टेड रहेगी क्योंकि हम लोग होस्ट करने वाले हैं इसको, ठीक है. और किसकी जबान नहीं रहती है तो वो तो कुछ अलग ही प्रोनाउंस करते रहता है, तो आस पास बोल लेता है वो, तो एक अलग ही हो जाता है. तो होस्टेड सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस और मैनेज सर्विस जो कि मैनेज बाय क्लाउड है, और ये सेल्फ होस्टेड सर्विस है जो सेल्फ होस्टेड बाय मैनेज बाय कस्टमर है, और अनमैनेज सर्विस भी बोल सकते हैं हम लोग उसको. तो अनमैनेज सर्विस में हमारे पास क्या होगा, EC2 पे हम लोग इंस्टॉल करेंगे, GCE पे करेंगे और अजूर VM पे कर सकते हैं, ठीक है. यहाँ पे करेंगे तो इसका प्राइस अगर यहाँ पे तुम्हारा मंथली $100 हो रहा है ना, अगर इसका कॉस्ट माई सीक्वल डेटाबेस इंस्टॉल करने का, तो यहाँ पे तुम्हारा $400 हो जाएगा वो कॉस्ट, और या 300 होगा, मे बी एग्जैजरेट हो रहा है. बट यू विल सी द डिफरेंस बिकॉज यहाँ पे वो एडमिन काम वो कर रहा है ना. अब यहाँ पे अगर सिक्योरिटी पैच आएगा माई सीक्वल पे तुमको अप्लाई करना पड़ेगा कंपनी को. कंपनी के पास में अगर कोई बंदा नहीं है जिसको नहीं आता ये करने के लिए तो कंपनी के तो लग गए, ऐसा हो जाएगा. तो कंपनी को सारी चीजें चाहिए जो अपग्रेड करना है. माई सीक्वल का 5.7 से 5.8 पे जाना है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, या 5 डॉट समथिंग समथिंग से 6 डॉट पे जाना है या 8 पे जाना है. 5.7 से डायरेक्ट 8 पे जंप हो रहा है माई सीक्वल, बट एक एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल के लिए बोल रहा हूँ. तो ये तुमको खुद करना पड़ेगा. यहाँ पे क्लाउड वाला सब करके देगा तुमको. कुछ भी वल्नरेबिलिटी आती है तो वो उसको फिक्स कर देगा. यहाँ पे तुमको सब खुद करना पड़ेगा बिकॉज सेल्फ होस्ट कर रहे हो ना, तुम खुद ही कर रहे हो. तो तुम्हारा जो $200 बच रहा है तो अब तुमको हेडेक भी आ गया है. तुमको वो पूरा हेडेक के साथ में तुम्हारा $200 बचेगा. उसमें तो तुम मान लो कि $100 मंथली तुम एडमिन को दे ही दोगे या जितना भी मतलब रहेगा, और $100 का जो तुम्हारा मुसीबत है वो पालोगे तुम. तो
एज अ ऑर्गेनाइजेशन आई नीड टू सी इज इट वर्थ इट कि मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, डू आई, अगर तुम्हारे पास में है एकदम अच्छे लोग एज अ ऑर्गेनाइजेशन, यू डोंट गो फॉर अ मैनेज सर्विस, देन यू गो फॉर अ सेल्फ होस्टेड सर्विस। अगर तुम्हारे पास डेडिकेटेड है, दूसरा क्या रहता है, यू अब इंसान है, आज इसको यहाँ पैकेज मिल रहा है, कल वहाँ पैकेज मिलेगा, कंपनी छोड़ते तो भागता रहता है। तो वो एक तो कंपनी के लिए ये सारी चीजें कंपनी एक इसमें लेती है। हम लोग अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हाई मैनेज सर्विसेज आर टेकिंग ओवर देन सेल्फ होस्टेड सर्विसेज। जो भी ट्रेडिशनली हुआ करती थी सब खत्म होते जा रही है, बिकॉज कंपनी के ये रहते हैं, क्योंकि एक एम्प्लॉय आज कर रहा है, मैंने एक डीबीए हायर किया हूँ, अब वो डीबीए 4 साल काम करेगा, उसको सैलरी नहीं बढ़ेगी तो भाग जाएगा 100% 50% हाइक के लिए दूसरी कंपनी में। अब मैं फिर मेरे रिसोर्सेस इन्वेस्ट करूं, एचआर को एंगेज करूं एक नया रिसोर्स हायर करने के लिए, तो एज अ कंपनी में ये सारे ऑप्शन सोचूंगा कि अरे ये मुसीबत है मेरे लिए, उससे अच्छा चलो यहाँ पर ये अपना स्पेशलाइज्ड हो गए हैं, ये लोग को करने दो ये सारी चीजें, ठीक है। तो वो एक एडवांटेज आते रहता है। तो वो सीक्वल के लिए हम लोग हमारे जो क्वेश्चन था कि सीक्वल का, तो हम सिर्फ उतना ही समझेंगे, अ, हम लोग उसको डीप डाइव करते नहीं बैठे, क्योंकि हम लोग डीबीए नहीं है, कंसेप्ट समझेंगे और जो बेसिक एक्टिविटी रहती है वो समझेंगे, एप्लीकेशन से इंटीग्रेट कैसा करना है वो समझेंगे, और उसका कहाँ पे कैसा यूज रहता है। डेटाबेसेस में भी सीक्वल्स आर आल्सो लाइक 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीक्वल्स, वो भी हम लोग देखेंगे अलग अलग जो यूज हो रहे हैं, जो है वो कैसे कैसे होंगे। और समथिंग हमने बीच में डेटाबेस का हमने बात भी किया था, हमारे यूजर डेटाबेस के टाइम पे जब हमने यूजर बनाया था तो फ्लैट फाइल्स पे स्टोर किया था, और यूजर के दूसरे डेटाबेसेस भी हमने डिस्कस किया था लाइक एलडैप बेस। तो हर जगह पे यू नीड ए स्टोरेज जहाँ पे तुम ये चीजें रख सकते हैं। ओके, फॉर शेल स्क्रिप्टिंग लाइक आई सेड, फाइल नेम डजंट मैटर, हम लोग कुछ भी फाइल नेम उसको रख सकते हैं, लेकिन बाय कन्वेंशन एक नाम दिया जाता है उसको डॉट एस एच। आई कैन क्रिएट अ स्क्रिप्ट लाइक दिस, क्रिएट यूजर, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ विदाउट एनी एक्सटेंशन, एंड इट वो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा उससे, मैंने कुछ एक्सटेंशन नहीं दिया उसको, राइट। और आई कैन गिव, मतलब जनरली ज्यादातर दिया जाता है, लेकिन अगर तुम नहीं भी दोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये लिनक्स विंडोज जैसा नहीं है कि डॉट ई फाइल का नाम रहेगा तो ही उसको रन करेगा, या एमएसआई रहेगा तो ही उसको रन करेगा, या कुछ और भी एक्सटेंशन रहेगा तो यहाँ पे रन हो जाता है अंदर के कंटेंट के हिसाब से। तो शेल स्क्रिप्ट का नाम जो पहला है कुछ भी दे सकते हैं हम लोग, बाय कन्वेंशन, अगेन जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ ना याद रखो और इसी तरह से बोलना है। कन्वेंशन अलग रहता है और सिंटैक्स और उसका जो कंसेप्ट रहता है वो अलग रहता है। कन्वेंशन मतलब एक प्रॉपर चीज फॉलो की जाती है कि उसको करने के लिए ये कन्वेंशन है, ये प्रोटोकॉल है उसका। तो बाय कन्वेंशन लोग क्या करते हैं, डॉट एस एच फाइल जो एक्सटेंशन यूज करते हैं, तो वी कैन ऑल्सो यूज दैट, बट अगर हम लोग यूज नहीं करेंगे तो हमारी स्क्रिप्ट फेल नहीं होगी। और उसमें दूसरा चीज ये रहता है, यहाँ पे समझा देता हूँ पहले। तो सब में पहले हमको हेडर लिखना रहता है, हर जो जो भी लिख रहे हैं, मतलब ज्यादातर प्रोग्रामिंग में अगर तुमने अगर कॉलेज में अगर किसी ने कंप्यूटर साइंस का किसी का बैकग्राउंड है, एमसीए या बीसीए या ऐसा कुछ किया है, कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस वाले कोर्सेज किए तुम लोगों ने, तो मे बी सी कहीं पे कहीं ना कहीं किया होगा, बिकॉज दैट्स व्हाट कॉलेजेस बताता है एज अ फर्स्ट लेवल ऑफ लर्निंग। तो वहां पे तुमने देखा होगा कि हर बार तुमको एक हेडर में देना पड़ता है कि वो एक्सपोर्ट करना पड़ता है या फिर उसको बताना पड़ता है वो स्क्रिप्ट है। तो दैट इज अ वेरी कॉमन, लाइक कोई सी भी लैंग्वेज लिखोगे तो उसका एक हेडर रहेगा, हेडर में तुम उसको बताओगे कि तुम क्या है ये, मतलब फाइल में क्या एक्सपेक्ट करना है, बिकॉज लिनक्स में एक्सटेंशन के से ज्यादा जो हेडर रहता है उसको प्रेफर किया जाता है। तो एक हेडर रहेगा जिसको हम लोग शी बैंक बोलते हैं, लिनक्स में याद रखने के लिए तुमको शी बैंक ऐसा करके याद रखना है। और जो ये शी बैंक ये याद रखोगे तो इसमें दो चीजें, एक तो जो शी है ना वो शार्प और हैश, जो इसको बोला जाता है, जो इसका साउंड है शार्प और हैश वाला साउंड आता है। हैश ज्यादा यूज नहीं करते, इसको पाउंड साइन बोला जाता है, ठीक है। और शार्प मतलब एक यूज किया जाता है, तो शार्प से जो उसका श निकला हुआ है, और एक्सक्लेमेशन से जो है उसका ये बैंग है, राइट। ज्यादातर बैंग को रिप्रेजेंट करने के लिए तुम देखोगे बॉम्ब फूट रहा है तो उस पर एक्सक्लेमेशन ऐसा बता दिया जाता है, तो दैट्स द वे, राइट, कि बैंग करके रहेगा। तो तुमको याद रखना है शी बैंग करके, शबैंग भी बोला जाता है, शी बैंग शबैंग। अगेन लाइक आई सेड बेस्ड ऑन तुम किस यूजर से डील कर रहे हो, यूएस से कर रहे हो, यूरोपियन से कर रहे हो, एशियन से कर रहे हो, दे माइट कॉल इट विद अ डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन एंड यू कैन स्टिक टू वन, और यू कैन मे बी स्टिक टू जो तुम्हारे ज्यादातर लोग दे पीपल आर स्टिकिंग टू प्रोनाउंसिएशन यूज्ड बाय द यूएस पीपल।
or English speaking people rather than non-English speaker people. तो shebang और shebang is commonly used by the English speaking people, which you can also use, because हम लोग वही यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज भी इंडिया की वही टर्निंग आउट टू बी, एटलीस्ट फॉर IT इट्स इंग्लिश. तो ये shebang हेडर रहेगा हमारा, एंड समथिंग दैट यू शुड रिमेम्बर, बिकॉज लोग क्या, ये इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में ये वर्ड रहे और तुम उसको याद रखो कि किस तरह से होगा. लोग उल्टा कर देते हैं, उसको ऐसा कर देते हैं, बैंक पहले लेकर आ जाते हैं और जो पाउंड साइन है वो बाद में लेकर आ जाते हैं. तो दिस इज अ एरर, ये मिस्टेक है. ऐसा करोगे तो तुम्हारी स्क्रिप्ट फेल होगी, स्क्रिप्ट में नहीं समझ में आएगा. तो जस्ट हैव टू रिमेम्बर shebang ऐसा. और उसके बाद में फिर जो हम लोग जो भी यूज करेंगे, तो अभी हमारे केस में हम लोग बैश स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तो बैश का जो भी लोकेशन है हमारे इस पे वो यूज करेंगे. तो बैश का लोकेशन पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे. तो अगर मुझे चेक करना है इस पे बैश है या नहीं, तो मैं विच कमांड से यूज कर सकता हूँ, क्योंकि ये बैश, ये जो, अगर इफ यू रिमेम्बर फ्रॉम द लास्ट लेक्चर, जब हमने टेराफॉर्म के टाइम पे बताया था, ये पाथ है राइट. ये बिन जो है एक पाथ है जहाँ पे सारे कमांड्स रखे हुए. मेरा ls कमांड, ये सारे कमांड यहाँ रखे हुए, तो इसको पहले ls ही कर लो. बिन देखते हैं. तो मैंने लास्ट टाइम पे बताया भी था कि देखो बैश कहीं पे मैंने ऐसे ये किया था, ये रहा बैश. तो बिन के अंदर में क्या है, ये बैश है, ठीक है. और मैंने जो कमांड यूज किया वो ls है, तो वो भी यहीं पर है, ये ls कमांड है. तो ये प्रोग्राम यहाँ पर है पूरा, जो भी लिखा हुआ है सी में या कोई भी लैंग्वेज में, इसको एग्जीक्यूटेबल बना के दिया है. तो जब भी मैं कुछ कमांड यूज करता हूँ, मैंने lss यूज किया है, तो वो बोल रहा है कि lss नाम का कोई कमांड नहीं है तुम्हारे पास में, राइट. तो उसने क्या किया है, ये टेराफॉर्म लास्ट लेक्चर में बताया था, जब हम लोगों ने टेराफॉर्म इंस्टॉल किया था, उसने ये जो पाथ वेरिएबल है हमारा, ये पूरे पाथ में जाके उसने चेक किया. उसने यहाँ पे देखा नहीं मिला, यहाँ पे भी नहीं मिला, यहाँ नहीं मिला, यहाँ नहीं मिला, यहाँ नहीं, जितने भी कोलन सेपरेटर है नए पाथ, उसने सब जगह जाके एलएसएस ढूंढा, उसको कहीं पे नहीं मिला. और फिर बाद में मुझे एरर थ्रो कर दिया उसने. अब ये थोड़ा सा सजेशन भी कर रहा है कि डिड यू मीन दिस, या फिर इंस्टॉल करने के लिए ऐसा वैसा करो. बट आई डोंट वांट दैट, आई जस्ट वांटेड टू सी दिस सिंपल एरर, जो वो बताया कि कमांड नॉट फाउंड, राइट. तो लास्ट टाइम टेराफॉर्म में देखा था हमने, तो सेम चीज यहाँ पर यहाँ पर भी उसका भी है. तो बैश भी यहाँ पर क्या, ये कमांड है जो बिन बैश में रखा हुआ है. तो ये लोकेशन है, तो इसलिए मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जब भी फाइल मेरी रन करना है, जब मैं हेडर दूंगा तो क्या होगा, जब भी मैं उसको हेडर में यहाँ ऐसा दे दिया हूँ, तो जब मैं ये फाइल रन करूंगा, मतलब जो मेरी स्क्रिप्ट बनेगी और स्क्रिप्ट को मुझे रन करना है, लाइक ls जो है वो स्क्रिप्ट है, और ls को मैंने रन किया तो उसके अंदर में एक हेडर होगा. लेकिन अब ये कैसा, ये हम लोग क्या मतलब बाइनरी इसमें रहेगा, तो वी वोंट बी एबल टू रीड. तो हम लोग इसको ये कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं फाइल इन ls. फाइल एक कमांड है जिससे तुमको उसका टाइप पता चल जाएगा. ये स्क्रिप्ट है, इसको मैं कैट करूंगा तो कुछ रीडेबल या ASCII टेक्स्ट वगैरह नहीं आने वाला है यहाँ पर. ओके. तो ये तुम्हारा स्क्रिप्ट ये रहेगा. तो प्रोग्राम तो है, लेकिन हम लोग इसको कैट करके देख नहीं सकते. तो बेसिकली ये प्रोग्राम वहां पर है. और फाइल कमांड से हमेशा जब भी कोई फाइल है तुमको पता नहीं है कि वो क्योंकि कैट कर दोगे और कुछ ऐसी फाइल रहेगी जो स्क्रिप्ट रहेगी या इनक्रिप्टेड रहेगी, तो तुम्हारा जो सर्वर को हैंग कर सकता है वो, और तुम्हारा प्रॉम्प्ट भी चले जाएगा. तो बेटर वही रहता है कि हमेशा फाइल से उसका फाइल टाइप चेक करो. लाइक अगर मैं यहाँ पे टच करके फाइल बना दूं, क्रिएट यूजर, मैं इसको फाइल करता हूँ. तो अभी फिलहाल वो बोल रहा है एम्प्टी है, लेकिन उसके अंदर जो भी रहेगा तो बताते रहता है मुझे, ठीक है. तो जैसा उसने मुझे ऊपर में बताया कि इट वाज स्ट्रिप्ड, तो मैं स्ट्रिप्ड है तो आई शुड नॉट गो एंड ट्राई टू रीड दिस फाइल, क्योंकि मैं रीड नहीं कर पाऊंगा जो भी प्रोग्राम लिखा हुआ है. अब ls फॉर आई नो फॉर श्योर इट्स रिटन इन सी, तो उसमें हेडर है. तो जब भी मैं इसमें ये लिखूंगा, तो ये हेडर जब रहेगा तो हेडर क्या करेगा, जो भी फाइल के अंदर में वो है उसको जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा, लाइक मैंने ls को जैसा रन किया है वैसे ही अगर मैं मेरी स्क्रिप्ट को रन करूंगा, तो ये क्या करेगा, एक्चुअल एग्जीक्यूशन क्या होगा ग्राउंड लेवल पे. लाइक एको के लिए मैंने क्या किया था, अभी एको यूज किया था ऐसा, ठीक है. और एको को एक आर्ग्यूमेंट दिया था ये, और एको ने वो रन कर दिया. अब एको को मैं ऐसा भी बोल सकता था कि एको हेलो, तो वो क्या करता था, हेलो रन कर देता था.
तो उसने क्या किया, ये वेरिएबल को प्रिंट किया, तो वेरिएबल को इसने एक्सपांड कर दिया, मतलब वेरिएबल को एक्सपांड करना बोलते हैं इसको। तो ये किया, और ये जो पाथ था क्योंकि डॉलर साइन से स्टार्ट हो रहा था, तो दैट इज अ वेरिएबल। तो उसने क्या किया, इस वेरिएबल को एक्सपांड कर दिया, इसमें जो भी कंटेंट स्टोर था, वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर, उसमें जो भी था उसने एक्सपांड कर दिया, उसने मुझे दिखा दिया है कि इसके अंदर में ये लिखा हुआ है। अब ये टेक्स्ट था, तो टेक्स्ट को एक्सपांड करने की क्या, मतलब टेक्स्ट में क्या एक्सपांड करेगा, और टेक्स्ट ही आने वाला है, राइट। तो वॉट एवर आए जो मैंने दी, तो एको को मैंने जो दिया वो आ गया। तो सिमिलरली अगर बैश को मैं ऐसा फाइल का नाम दूंगा कोई भी, कि फाइल नेम लाइक मेरा क्रिएट यूजर, तो बैश रन कर देगा हूँ। तो जब मैं हेडर डालता हूँ इसके अंदर में, तो एक्चुअली में एग्जीक्यूशन वो ऐसा ही हो रहा है, बिन बैश और उसके बाद में क्रिएट अंडरस्कोर यूजर। मैं इसको रन ऐसा करने वाला नहीं हूँ, लेकिन जब मैं करूंगा इस फाइल को रन, इस फाइल को मैं डायरेक्ट ऐसा, डायरेक्ट फाइल का नाम ले लूंगा मैं, ऐसा क्रिएट यूजर ऐसा बोलूंगा, क्योंकि एलएस तो मैं वैसे ही रन कर रहा था ना, यहाँ पे एलएस मैंने ऐसा ही रन कर दिया था। ठीक है, तो एलएस को ऐसा रन करो या फिर फॉरवर्ड स्लैश बिन एलएस ऐसा रन करो, इट्स द सेम थिंग। तो अगर मैं ऐसा रन करता हूँ एलएस को, और ये ऐसा रन करता हूँ, तो वही आउटपुट आ रहा है, राइट। तो मैंने यहाँ पे फुल पाथ दिया है, यहाँ पे उसका फुल पाथ नहीं दिया। ये फुल पाथ नहीं देने से क्या हो रहा है, क्योंकि वो उसके पाथ में ऑलरेडी है। ठीक है, इसलिए अगर मैं फुल पाथ नहीं भी दे रहा हूँ तो वो चल रहा है। लेकिन अगर वो फुल पाथ, अगर वो पाथ में नहीं रहता तो मुझे फुल पाथ देना, ये अगर ये पाथ में नहीं रहता तो ऐसा उसको एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ता था। अब यहाँ पे बहुत पाथ पाथ कर रहा हूँ मैं, तो आई होप यू गाइस नॉट गेटिंग कंफ्यूज, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने ऑलरेडी पीछे में देख रखी है। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि तुमने वो देखा होगा और तुमको चीजें समझ में आ रही है, तुम्हारा दिमाग गोल गोल नहीं घूम रहा है। बिकॉज लिनक्स में जब भी ब्लैक स्क्रीन पे कुछ भी देखते बैठते हैं तो सर गोल गोल घूमना स्टार्ट हो जाता है एंड कॉन्सेंट्रेशन टूट जाता है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन ना टूटे और तुम फोकस करो, क्योंकि जब तुमको समझ में आएगा ना, तो लिनक्स बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मजे मजे की चीज है, मतलब बहुत मजा भी आता है करने के लिए। लेकिन अगर तुम्हारा फोकस ही नहीं बैठेगा, तुमको समझेगा ही नहीं ना, तो तुम्हारा इंटरेस्ट टूटेगा और तुमको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो इसलिए कंसंट्रेट करो, समझ के करो। और आइडिया तो मेरा वो हर बार वही है कि नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो। ठीक है, यस असलम। सर जो ls कमांड आपने दिया है, तो यू आर ऑलरेडी इन दैट पर्टिकुलर फोल्डर और फाइल, राइट? तो जैसे क्रिएट यूजर का वो ऑप्शन क्रिएट किया था, राइट? मैंने अभी एलएस में किया हूँ, तो क्वेश्चन क्या है? नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन है ये क्रिएट यूजर फाइल क्रिएट जो आपने किया है हम्म। वो, अच्छा हाँ समझ नहीं, ठीक है मैं समझ गया एक्चुअली, कोई नहीं। मतलब क्योंकि वो तो मैं कहीं पे भी रह सकता हूँ ना, मैं ईटीसी में जाके एलएस करूंगा तो ईटीसी में जो है वो वहां का दिखा देगा कंटेंट पूरा, राइट। उस डायरेक्टरी में जो भी कंटेंट रहेगा। अभी फिलहाल मैं स्क्रिप्टिंग डायरेक्टरी में हूँ, तो मुझे वहां का दिखा रहा है। राइट राइट, नहीं तो नहीं, मेरा मैं, कंफ्यूजन हो गया था, हाँ, मुझे लगा अच्छा, कि आप कोई और में, ठीक है कोई नहीं। नहीं मैं यहीं पर हूँ। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि एलएस को दो तरीके से मैं रन कर सकता हूँ। एलएस को मैं ऐसा रन किया बिकॉज एलएस जो है इस पाथ में अवेलेबल है, इस पाथ में एक लोकेशन है यहाँ पर, बिन एडेड है यहाँ पर, राइट, दिस गाय। तो क्योंकि एलएस इसके अंदर है, तो इसलिए उसने जस्ट एलएस बोलने से क्या किया, उसको रन कर दिया। तो अगर वो पाथ में नहीं रहता तो मैं उसको इस तरह से रन कर सकता था और वो रन होता था, नो प्रॉब्लम एट ऑल विद दैट। ठीक है, तो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। तो बैच में भी ऐसा ही है, मैं ऐसा उसको पूरा पाथ दे के करूँ या फिर जस्ट उसको बैच बोल के फाइल का नाम दे दूं, तो दैट वाज माय पॉइंट। तो मेरी फाइल को जब स्क्रिप्ट बनेगी तो मैं आई कैन जस्ट रन इट लाइक दिस क्रिएट यूजर। अब क्रिएट यूजर में अब तुमको समझना पड़ेगा, क्रिएट यूजर में क्या होगा, जब मैं इसको अभी यहाँ पे बोल रहा हूँ, अभी मेरे पास में इसमें, चलो मैं एक लिख देता हूँ कुछ तो दिख रहेगा इसमें प्रोग्राम। अभी इसमें मैं जस्ट एको हेलो फ्रॉम स्क्रिप्ट, मैंने अभी शिबैंग भी नहीं डाला हूँ पर्पसली, ठीक है। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ, तो क्या बोल रहा है कि कमांड क्रिएट यूजर नॉट फाउंड, डिड यू मीन क्रिएट यूजर। तो उसने बोला कि ये जो तुम्हारा कमांड है नहीं, तो उसने क्या किया पता है, उसने पाथ में जाके ढूंढा। एलएस में भी मैंने वैसे ही किया था जैसे इसको रन किया। तो अब मैं इसको उसको फुल पाथ दूंगा, जैसा मैंने एलएस को दिया था, इसका फुल पाथ क्या रहेगा, पीडब्ल्यूडी करके निकालते हैं और इसको ये देते हैं। ये अभी भी रन नहीं होगा क्योंकि उसको एग्जीक्यूटेबल बनाना पड़ेगा, ये जो है इसको ये जो हमने परमिशन दी है उसको एक्स एक्स देना पड़ेगा अपने को, तब जाके होगा। तो सी एच मोड करते हैं 755 7 4 4 है ना, उसको सिर्फ से ये दिया है।
ओके अब मैं इसको रन करता हूँ फिर से। लेट्स डू दैट ड्रिल अगेन। मे बी तुम लोग को लगेगा कि जो डायरेक्ट हमने पहली बार रन किया था उसकी वजह से रन नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे एरर अलग ही दे रहा है। वो बोलता है फाउंड ही नहीं है, वहाँ पे तो भी एटलीस्ट बोला था परमिशन नहीं है। अब इसको फुल पाथ पे रन करता हूँ तो देखो आ गया, हेलो फ्रॉम स्क्रिप्ट बोल रहा है, जो भी उसके अंदर में लिखा हुआ था हमने सेम एज। अगर मैं एलएस को ऐसा कर रहा हूँ या एलएस को ऐसा कर रहा हूँ तो रन हो रहा है। तो अगर मैंने लाइक जैसा हमने टेराफॉर्म में किया था, राइट, टेराफॉर्म में इफ यू रिमेम्बर हमने क्या किया था, टेराफॉर्म को एग्जिस्टिंग पाथ में मूव कर दिया था या कॉपी कर दिया था। तो अगर मैं यहाँ पर भी ऐसा करता हूँ तो इट विल वर्क। जस्ट अगर मैं इसको एको, ये जो एग्जिस्टिंग पाथ है हमने टेराफॉर्म कहाँ पे मूव करके रखा हुआ है, यूजर लोकल बिन में करा हुआ है। टेराफॉर्म को डायरेक्ट एमवी कर दिया था, क्योंकि इसको हम लोग एमवी भी कर सकते हैं, डायरेक्ट सीपी भी कर सकते हैं। टेराफॉर्म को आई थिंक सीपी किया था, या फिर हम लोग इसके लिंक बना सकते हैं। तो लेट्स गो एंड क्रिएट अ लिंक हियर। लिंक में क्या रहेगा, यहाँ पे मैं चेंजेस करूंगा और लेकिन मैं कमांड को ऐसा भी रन कर सकता हूँ। तो मैं एक लिंक बना के बताता हूँ। लिंक का मैन पेज देख लेते हैं बिकॉज आई नीड टू रिकॉल दिस। तो सिनॉप्सिस में क्या बोल टारगेट और लिंक, ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है सारे ऑप्शंस हैं। राइट नाउ आई डोंट नीड एनी ऑप्शन, आई मीन आई डू नीड अ ऑप्शन, आई नीड टू क्रिएट अ सॉफ्ट लिंक, ताकि चेंज सॉफ्ट लिंक में क्या होता है कि यहाँ पे जो भी चेंजेस करूंगा वही चेंजेस वहां पर भी रहेगा। तो वो इट्स लाइक अ शॉर्टकट। हार्ड लिंक में डिफरेंट कंसेप्ट है, अगेन वी हैव डिस्कस दिस। तो अभी इसमें क्या चाहिए, मुझे टारगेट चाहिए, लिंक नहीं चाहिए। ठीक है, तो टारगेट में मेरा क्या रहेगा, दिस इज गोइंग टू बी द टारगेट। सॉफ्ट लिंक के लिए मुझे डैश एस पास करना पड़ेगा, और इसी डायरेक्टरी में जो यहाँ पर है ना, इधर पे मैं बना देता हूँ। तो अब इसको अगर देखेंगे ना हम, तो देखो लिंक है। तो इवन दो इट्स अवेलेबल इन द यूजर लोकल बिन, लेकिन ये फाइल किसको पॉइंट कर रही है, इस फाइल को। तो अगर मैं इस फाइल में कुछ भी चेंजेस करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा। अगर मैं अभी ये कमांड रन करता हूँ तो टू प्रूव दैट पॉइंट इट एक्चुअली वर्क्स। यहाँ पे काम नहीं किया था, यहाँ पे इस तरीके से काम किया था बिकॉज वहाँ पे लिंक अवेलेबल है। तो जब मैंने उसको क्रिएट यूजर बोला तो उसने काम किस तरह से किया, कौन है, म्यूट करो ना। अगर क्वेश्चन है तो हैंड रेज करो, अदरवाइज जस्ट म्यूट। एंड सो जब मैंने अभी इसको क्रिएट यूजर बोला तो उसने क्या किया, इस कमांड को पाथ में गया, ढूंढा उसने, यहाँ पर ढूंढा, उसको नहीं मिला। यहाँ पर गया तो उसको लिंक मिली ये वाली यूजर लोकल बिन में, ये फाइल, और ये फाइल यहाँ पे पॉइंट कर रही थी। तो बेसिकली उसने क्या किया, इस फाइल को रन कर दिया है, राइट। तो इसको जैसा हमने रन किया था तो वही हुआ है। तो उसने जब ये किया तो पाथ में गया, यहाँ पे बना देता हूँ ताकि confusion ना हो। डायग्राम पे देख लो, ब्लैक स्क्रीन पे देखने से अगर ओके, थोड़ा मेरा लैपटॉप स्लो चल रहा है। जब मैंने इसको क्रिएट यूजर बोला हूँ तो उसने क्या किया है, वो उसने पाथ में गया, वो पाथ के जितने भी थे, और उसको एक पाथ जो यहाँ पे पाथ में तो बहुत सारे पाथ थे, ठीक है। अब एक पाथ जो उसको मिला एक्चुअली, ये नाम का जो कोई बंदा मिला है, दैट इज ही फाउंड इट इन यूजर लोकल बिन में मिला उसको, राइट। यहाँ पे क्रिएट यूजर करके ऐसा था। अब ये जो है ये क्या कर रहा है, ये फाइल क्या है, ये फाइल तो सिंपली पॉइंटर है जो कि एक्चुअल फाइल यहाँ पे पॉइंट कर रही है, जो फाइल है मेरी रूट स्क्रिप्टिंग और क्रिएट यूजर। यहाँ पे ये फाइल है, तो ये फाइल क्या करती है, सिंपली दिस फाइल इज पॉइंटिंग टू दिस फाइल। नाम दोनों का सेम है, आई कुड हैव kept it a different name as well। इसका नाम कुछ और, इसका नाम कुछ और लिख सकता था मैं। एंड देन आई जस्ट हैव टू मेक श्योर कि जब ये यहाँ पे जो है वो मैच होना चाहिए, यहाँ पे जो है वो मैच नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसको डॉट एस कर देता हूँ और इसको डॉट एस नहीं देता हूँ, तो इफ आई रन दिस या तो दिस विल बी टू डिफरेंट कमांड नाउ, यूजर डॉट एस और वो। तो जब मैं ये रन करूंगा तो वो रन नहीं करेगा, क्योंकि उसको मिलने वाला तो यहाँ पे ये है, और ये इसको यहाँ पॉइंट कर रहा है, राइट, यहाँ पे पॉइंट हो रहा है। मैं चेंजेस यहाँ करूंगा, इस कमांड को रन करूंगा तो मेरी स्क्रिप्ट हर बार रन हो जाएगी। तो अगर मैं इसमें कुछ भी रन करता हूँ तो हर बार जाके उसको रन हो जाएगा उस तरीके से, ठीक है। तो अभी इसमें कैसे, डिफॉल्ट शेल मेरा वही है, तो हर बार क्या कर रहा है, डिफॉल्ट शेल में रन होता है, तो हर बार वो बैश में रन करता है सारे। अगर मुझे शेल कुछ और यूज करना था
तो वो रन नहीं करता था, और इसलिए यहाँ पे अब क्या आता है, जो इंटरप्रेटर है वो अब आ जाता है हमारा रेस्क्यू करने के लिए हमको। तो इंटरप्रेटर में क्या होगा कि जब भी तुम यहाँ पे जो शेल लगाओगे वो उस शेल में उसको रन करेगा। इसमें क्या होता है, डिफॉल्ट शेल में रन कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे टू एक्चुअली रन योर स्क्रिप्ट। नॉर्मली जो ट्रेडिशनल लोग स्क्रिप्ट रन करेंगे, मैं वो भी बताता हूँ, बट जस्ट वांटेड टू एक उसका जो बिहाइंड द सीन एक्सप्लेन ये था कि किस तरह से हो रहा है, वो एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इतना बताया। इसमें दो चीजें कवर हो गई हमारी, मतलब दो चीज, एक तो रिट्रेट हुआ है कि तुमको पाथ फिर से समझ में आई होप आया होगा, समथिंग वी हैव डिस्कस्ड लास्ट वीक एज वेल व्हाइल डूइंग द टेराफॉर्म। तो यू ऑल यू हैव टू डू इज सिंपली यू नीड टू मेक श्योर योर प्रोग्राम इज प्रेजेंट है, और उससे तुमको ये भी समझ में आ रहा है कि प्रोग्राम किस तरह से बन रहा है। जो एलएस है, एको है, सीडी है, दीज आर ऑल नथिंग बट अ प्रोग्राम, और वो प्रोग्राम हम लोग रन करते हैं और हमारा काम हो रहा है सारी चीजों में, ठीक है। तो कमिंग लेट्स गो बैक टू स्काई अगेन, और यहाँ पे मैं इसको अब पहले क्या करता हूँ, इसमें हेडर डाल देता हूँ शीबैंग। ये हमेशा याद रखना है, और ये हमेशा उसमें रखना है। इंटरव्यू भी यही पूछा जाता है अगर तुम जाओगे, बिकॉज लिनक्स इज वेरी कॉमन, तुमको पूछा जाता है कि सब में पहली लाइन तुम्हारी स्क्रिप्ट में क्या रहती है, शेल स्क्रिप्ट में, एंड दैट शुड बी ये शीबैंग है। ये क्या है, इंटरप्रेटर है। ये मतलब दिस इज द वर्ड यू हैव टू यूज। ये इंटरप्रेटर है जो तुम्हारी स्क्रिप्ट को इंटरप्रेट करेगी और उस पर रन करेगी। अगर तुमने कोई ऐसा कमांड इसमें यूज किया है जो शेल का है, विच इज नॉट इन बैश, तो वो रन नहीं होगा। अगर तुमने यहाँ पे अगर मुझे शेल यूज करना है तो आई सिंपली हैव टू से दिस। तो अभी इसमें क्या होगा, जो कमांड या कुछ ऐसा वे बैश में हैंडल होगा, जो कि बहुत रेयर रहता है, लेकिन स्टिल देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो बैश में है जो शेल में नहीं मिलेगा तुमको, क्योंकि शेल से ही बैश बना हुआ है। बैश जो एक जेसन बॉर्न करके बंदा था डेवलपर, उसने बॉर्न शेल बनाया, तो उसने उसके नाम से बनाया बॉर्न अगेन शेल। तो शेल को ही उसने यूज करके खुद का बना लिया। फिर लोगों ने के शेल, जी शेल, अलग अलग शेल बनाया हुआ। मैक में जी शेल यूज होता है, तो फिश है। तो ये सारे शेल से बन रहे हैं, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, राइट, शेल का सारा कंसेप्ट। तो अगर मैं शेल में चाहिए तो आई हैव टू गिव दिस इंटरप्रेटर है यहाँ पे, जो इंटरप्रेट करेगा मेरी स्क्रिप्ट को। तो ये जो भी मैं देता हूँ ना, ये और स्क्रिप्ट का नाम, जो एक्चुअल जब मैं इसको रन करूंगा तो एग्जीक्यूट कैसी होगी, तुमको अज्यूम करना है ये इस तरह से रन होगा। अगर मैं उसको ये देता था ऐसा बिन एसएच, और तो ये इस तरीके से स्क्रिप्ट का नाम, तो यहाँ पे एक्चुअली सिंटैक्स वाइज ऐसा रहेगा कि तुम्हारा शीबैंग हेडर और फाइल, जो भी तुम्हारी फाइल का नेम है, तो ये इस तरीके से जाएगा। मतलब जब तुम सिर्फ स्क्रिप्ट रन करते हो तो हेडर में जो भी तुमने कमांड दिया है उसको रन करने के लिए, अगर तुमको पाइथन रन करना है तो सिंपली यू विल हैव टू गिव पाइथन। तुमको रूबी रन करना है तो तुम रूबी दे दो वहां पे, जहाँ पे भी तुम्हारा रूबी स्टोर है। तो वो जस्ट देने से नहीं होगा, ये चीज वहाँ पे एक्चुअल लोकेशन पे रहना भी चाहिए, राइट। हमने एलएस करके बिन बैश देखा, वहाँ पे वो है बैश। अगर वो पाइथन रन करना है तो वहाँ पे पाइथन रहना चाहिए। तो तुम वो चीजें करके कर सकते हो जहाँ पे भी तुम्हारा पाइथन रहेगा, जिस तरह से तुमको रन कर, ठीक है। तो दैट्स द वे एक्चुअल एग्जीक्यूशन हैपेंस। लेकिन उसको हम रन करेंगे जस्ट बाय दिस। जब भी मैं ये कर रहा हूँ ना, तो एक्चुअली वो ये हो रहा है, जब भी मैं क्रिएट यूजर कर रहा हूँ ना, तो बिन बैश, और उसके बाद में उसको बैश को इनपुट फाइल दी जा रही है। एको को इनपुट क्या दिया गया था, एको पाथ दिया गया था, राइट। तो उसी तरह से बैश को इस तरह से रन, बैश को ऐसा जा रहा हूँ, और बैश का फुल पाथ दिया हुआ है हमने, तो इसलिए वो ये जा रहा है। तो जो मैं बता रहा हूँ, ट्राइंग टू एक्चुअली एक्सप्लेन, कि वो हेडर में जो भी कमांड दिया है तुमने वो, और फाइल का नाम जो भी जिस फाइल में तुमने उसको ऐड किया हुआ वो, तो जब मैं ये रन करता हूँ तो बेसिकली ये रन हो रहा है, ठीक है। तो अभी ये करके देखा ना, तो अगर यहाँ पे मुझे शेल से रन करना था तो सिंपली आई हैव टू गिव /bin/shell। तो जब मैं क्रिएट यूजर रन करूंगा तो क्या होगा, sh क्रिएट यूजर वाला कमांड रन करेगा, और अगर उसमें कुछ अगर चीजें होंगी नहीं होंगी उसके हिसाब से वो काम करेगा, ठीक है। ओके, तो ये दैट्स अबाउट लाइक हेडर, ये इंटरप्रेटर है, और ये शेबैंग ऐसा यूज करना है। और ये कुछ भी हो सकता है, बिन बैश हो सकता है, बिन sh हो सकता है, बिन if you have like Ruby, Python, that it could be anything. Yes, Aditya, you also have a question. सपोज ये अगर अभी ये बैश है, ओके, ये शेल स्क्रिप्ट है, सपोज मुझे ये पाइथन का लिखना है, तो वो बिन बैश की जगह पे क्या आएगा, या फिर बैश की जगह पे जहाँ पे भी पाइथन? yes, if you have Python stored in the bin, you can do that. But traditionally in Python में environment बनाया जाता है. I mean, you create an environment. So yes, you can use Python directly here.
if all you have to make sure your Python is present there. But Python में अलग concept use होता है, right? And that's like they have the virtual environment concept. So you normally you give user then environment and then the environment name of your environment. So that's the way you'll see the script. But this is also works. ये भी काम करो. वन मोर अभी ये बैश है ओके आपने बोला 2-3 टाइप्स और है लाइक जेसेल बैश और एक्सेट्रा तो सपोज अभी ये बैश है मुझे जेसेल यूज करना है तो बैश की जगह पे मैं जेसेल यूज करूंगा राइट यस करेक्ट यस और इनमें से बेटर कौन सा है जेसेल या बैश या क्या लाइक अभी कौन सा यूज होता है अभी एनवायरनमेंट okay that's like that's operating specific now. Ubuntu, Red Hat, and all these they are using Bash, and SUSE and Mac. I think they are using Z Shell. So it's also availability. What is available on your operating system? It's not what you want to use or what is you feel it's best. जो operating system पे available है वो use कर सकते हैं हम लोग. Right now, Shell, SH, and Bash is available on the Debian and other CentOS, Red Hat, and all other operating system. If you want to use Z Shell, you may have to install Z Shell here if it's not already there. So that's the way it works. But Debian community and Red Hat community, Red Hat actually they are using Bash. So mostly you'll work with the Bash, and a lot of scripts also you'll find that those are written in Bash. Now recently the Z Shell have actually caught a fire. I would say that it's grabbing everyone's attention. But lot of scripts are written in Bash, and I would also say stick to Bash only. And conceptually some समझ के ले लो कि can happen Z Shell, K Shell as well, but those are not very frequent. Use cases ज़्यादा इसी के because lot of open source जो famous operating system है Linux पे, that is Debian and Ubuntu, open source में, and that uses Bash. So Google का सबसे बड़ा data center है in the whole world, and Google uses Debian as their operating system. And Google का कोई भी ये product तुम लोगे, like I was saying, if you go for any managed service from the Google, they are using Debian as underlying OS. So they're using Debian and Debian uses Bash. So just giving you an one way to tell yourself like how these are like pretty famous. Got it. Okay. Yes. I mean, yeah, you can mute because your question I'm gonna address to others as well, and so the answer was for everyone, not just for Aditya. Right? Okay. Coming back to the next part. So the header is clear, I hope, and I hope header में mistake नहीं करना है किसी ने, and it should always be unsigned and bang, not the other way around. जो mistake हो जाती है लोगों से, तो all you have to remember shebang, बस उसको याद रखना है और उसके basis पे तुमने ये header उसमें जो भी तुमको डालना है तुम डाल सकते हो, ठीक. And execution क्या होगा कि ये तुम्हारा ये और जो भी ये फाइल का नाम है वो रन उस तरीके से होगा. तो that's something you have to imagine which system is going to do that for you. तो when जब execution होगा तो ये रहेगा और तुम्हारे फाइल का नाम रहेगा, वो उस तरीके से उसको execute कर देगा, ठीक है. That's about the execution, how it gets executed. अब उसके multiple ways है, वो मैं बता देता हूँ तुमको execute करने में. और दूसरा एक इसमें ये रहता है कि this is a comment. सिर्फ first line में जो pound रहेगा ना, that is for the shebang header. Rest everywhere that you see, so I can say this is comment. तो ये comment रहेगा. अभी इसमें कुछ नहीं रन होगा. अगर if I were to go and run this, तो फिर से वही हुआ, राइट, क्योंकि अगेन वो पूरा साइकिल फिर गया. अभी तो मैंने इसको वहां पे डाला हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है. तो लेट मी गो अहेड एंड डू वन थिंग. ये फाइल को भी चेंज कर सीपी करता हूँ मैं इसको. I'll create another one. I'll say this create user.sh. Let's go and make changes into this. और अब मैं इसको रन करता हूँ तो हम लोग को दिख नहीं रहा है, राइट. .sh मैंने ऐड किया हूँ अंदर, वो दिख नहीं रहा है. इसको रन किया है तो बिकॉज दिस फाइल इज स्टिल पॉइंटिंग टू दिस फाइल. ये जो कमांड है इज पॉइंटिंग टू दिस फाइल. इसमें चेंजेस नहीं हुआ, चेंजेस इसमें किया है. तो दिट्स बेसिकली अ न्यू फाइल राइट नाउ. सो रन करने के लिए रन किस तरह से होगा वो, अगर ये ऐसा रन होगा, ठीक.
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, hello from script.sh. तो this is the way shell is actually executing it for you. But अभी तो मैंने खुद करके दिया, तो फिर shell कैसे कर रहा है? तो that's the way generally you not use it. You can use this way as well. Right, it does. तो इसमें देखो एक एडवांटेज है, कि एडवांटेज बोलो या डिसएडवांटेज बोलो, whatever the way you want to say. Okay. इसके अंदर में हम लोग फाइल को जो है फिर से सम आउट करते हैं 644. तो दिस एक चीज तो हमने देखी थी कि स्क्रिप्ट को रन करने के लिए उसको एग्जीक्यूटेबल बनाना है हमको, देन ओनली वी कैन रन दिस स्क्रिप्ट, अदरवाइज वी वोंट बी एबल टू रन इट. ठीक है, तो इफ आई वांट टू गो एंड रन दिस अगेन, स्टिल वर्क्स. तो दिस इज द वे यू कैन रन इट. वन वे टू डू दैट. अनदर वे जो ऐसा रहता है सोर्स करके कर सकते हैं, बट नॉट रिकमेंडेड. It works that way as well, and you can do this way as well. So अभी मैं सारे जो है ना सारे जो commonly इंडस्ट्री में यूज होते हैं ना, you can use different way if you want execution method में, but there will be one common method रहेगा जो तुम यूज करना हर बार. तो अभी मैंने देखो सारे कितने सारे तरीके बता रहा हूँ तुमको रन करने के लिए. You can run this. मैं इसको शेल से भी रन कर सकता हूँ एक्चुअली. ये मेरा कमांड है यहाँ पे, because it's a very simple script, so sh भी इसको रन करेगा, no problem at all. I can run this with the sh as a full path. इसको ऐसे रन कर सकता हूँ. तो as long as इसके अंदर में जो भी चल रहा है ये इसको प्रॉब्लम नहीं करता. ये जो इसमें कमांड है sh, as long as sh understand what is going on the commands, there's no problem, it will go and execute that. ठीक है. So the way to run it, you can run that directly with the interpreter or the bash or filing. You can run that with the source. You can run that with the dot, or you can run with the full path, absolute path. Okay. And if I say dot /, that's dot means nothing but this absolute path, right? Dot का मतलब रहता है current directory, and that means that. So हम लोग उसको ऐसा भी रन कर सकते हैं. ये दो तरीके भी देखते हैं हम लोग. Yes, असद. हाँ शहबाज भाई, आपने वहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो उसका जो वो था ना, वो निकाल दिया परमिशन, फिर भी वो रन हुआ. राइट. तो वो ये ऊपर वाले तरीकों से रन होगा, बिकॉज मैं डायरेक्ट रन कर रहा हूँ ना, तो मैं उसको एज अ स्क्रिप्ट मैं खुद उसको इंटरप्रेटर दे रहा हूँ. तो दिस इज द, ये तरीके में वो तुम्हारा एक एडवांटेज है. जो ऊपर वाला तरीका है यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं भी रहेगी तो उसको रन करेगा ये. बट नीचे वाले जो तरीके अभी हम लोग बता रहा हूँ उसके अंदर में बिना एग्जीक्यूटेबल रन नहीं कर पाओगे. तो यहाँ पे हम लोग रन कर सकते हैं विदाउट एग्जीक्यूटेबल, नॉन एग्जीक्यूटेबल बोलता हूँ इसको, एज लॉन्ग एज वो रहेगा नॉन. बट यहाँ पे ओनली एग्जीक्यूटेबल ही यू कैन रन कर सकते हैं. तो तुम्हारे को वो परमिशन लेना चाहिए तभी रन होगा. ये दो जो लिखे हैं, तो बैश में दे दिया हमने, फोर्स करके उसको रन करने लगा रहे हैं. तो दैट्स व्हाई हैपनिंग. सोर्स भी वही कर रहा है, डॉट भी वही कर रहा है, दैट्स जस्ट डिफरेंट वेज टू डू दैट. सोर्स में भी वही कर देता है, उसको जो भी अंदर में कमांड है ना, वो कमांड के साथ में सोर्स यही रन कर रहा है. डॉट एंड सोर्स दे आर सेम, जस्ट अल्टरनेट वे है दोनों रन करने के लिए. तो डॉट से भी तुम उसको कर सकते हो, सोर्स से कर सकते हो, बैश से कर सकते हो. एब्सोल्यूट पाथ द मोमेंट आई गिव दिस, अगर ये फाइल एग्जीक्यूटेबल नहीं है तो वो रन नहीं होगा, फेल हो जाएगा, व्हिच वी कैन शो यू नाउ. तो मैं डॉट / दे सकता हूँ. डॉट का मतलब रहता है करंट डायरेक्टरी, राइट, जो हमने स्टार्टिंग में देखा है. तो इफ आई से क्रिएट दिस सेइंग दिस, ये तो एग्जीक्यूटेबल है, तो ये रन कर दूं तो बोल रहा परमिशन डिनाइड, इसको नहीं करने देखा. तो दिस, और इफ आई रन दिस वे, डॉट निकाल देता हूँ. तो ये और ये दोनों सेम है, बिकॉज अगेन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस यहाँ पे डॉट / का मतलब हो जाता है ये करंट डायरेक्टरी. तो जनरली यू विल सी दिस, लोग इस तरह से रन कर रहे हैं. तो जो कॉमन मेथड है जो आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग इज दिस एंड दिस.
ये दो कॉमन मेथड में यू सी पीपल आर यूजिंग। इसमें लाइक थोड़े डीबग के एडवांटेज है। यू कैन व्हेन यू रन द बैश यू कैन एक्चुअली सप्लाई सम मोर ऑप्शंस। लाइक हम लोग एलएस में ये करते हैं, मैन बैश करता हूँ मैं, तो इसके जो ऑप्शंस है लाइक ये जितने भी ऑप्शन दे रहे हैं ये सारे मैं रन कर सकता हूँ उसको स्क्रिप्ट रन करते टाइम पे। मतलब यहाँ पे बैच दिया, वो ऑप्शन पास किया और वो फाइल रन कर दिया, तो ऑप्शन जो भी काम करने वाला है वो मुझे बताएगा। फॉर इंस्टेंस ट्रबल शूटिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर उसको एक्स में रन करते हैं। एक्स क्या करेगा, तो अगर मैं ऐसा करता हूँ बैश एक्स और जो भी मेरी फाइल का नाम है, तो वो क्या करता है, जो जो कमांड वो अंदर रन करना है वो कमांड वो बताता है कि मैं ये रन करने वाला हूँ और इसका ये आउटपुट तुमको ऐसा दिखाई देगा, तो तुमको इसमें दिखाई दे रहा है। तुमको अगर उसको एग्जीक्यूटिव तुमको उसको वर्बोस में रन करना है कि व्हाट इज डूइंग इनसाइड इट, तो इस तरीके से तुमको दिखाई देगा। इसका फाइल के अंदर में भी हम लोग ये यूज कर सकते हैं, दैट इज अ डिफरेंट वे टू डू दैट, बट नॉट डू इट राइट नाउ। जस्ट तुमको बता दिया था कि इस तरीके से रन हो रहा है तो ये होगा, ठीक है। बिकॉज द अदर थिंग इज गाइस, यू हैव टू make sure that there are people here who are looking at this Linux and shell scripting for the first time. So जब तुम लोग question whatever you're gonna ask, right, I'm going to answer that. I'm gonna answer that in a better way. So all you have to be is patient, people who know Linux, right? क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है कुछ भी, they are looking this for the first time. तो the way I'm actually doing एकदम basic से और ज़्यादा इतना ये करके, it's because for them. You can try to understand, make your understanding maybe one level better, but तुम्हारे जो क्वेश्चन है जो भी मतलब आ रहे हैं एडवांस होंगे तो लाइक आई एम गोना पार्क इट, राइट। तो इसलिए हैव पेशेंस, एवरीथिंग इज कमिंग अप अहेड। मैं सारे डिटेल में ही जा रहा हूँ, तो जो भी तुम लोग बता रहे हो दोज आर ऑल कमिंग अप एनीवे, ठीक है। एंड जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उस पर क्वेश्चन पूछो, लाइक व्हाई वी डिड दिस। एंड मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फ्रेशर्स जो है कॉलेज पास आउट से या कॉलेज में स्टिल है और जो नॉन आईटी हैं, दे शुड आस्क मी मोर क्वेश्चंस, क्योंकि उनके लिए ही इतना डीप लेवल में जा रहा है। नॉन आईटी वाले ऐसा मत समझो कि अरे ये आईटी वाले का चल रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा, तो यू शुड आस्क मोर क्वेश्चंस। यस सदीप। हाँ, ये आपने अभी जैसे प्लस एक्स करके बताया ना, मतलब फाइल के पहले प्लस एक्स, तो वैसे ही अगर हाइफन हाइफन वर्बोस कर दे तो भी बताता है। तो प्लस एक्स और हाइफन हाइफन वर्बोस में क्या सीन है, मतलब वो सेम ही है क्या? एक्चुअली योर वॉइस वाज नॉट क्लियर, तुम फिर से रिपीट करो क्वेश्चन। हाँ, ये बैश ओके, ये हाइफन एक्स क्रिएट यूजर डॉट एसएच आपने किया, राइट? और इसके आगे अगर मैं हाइफन हाइफन वर्बोस लगा दूं, मतलब ये माइनस एक्स निकाल के हाइफन हाइफन वर्बोस लगा दूं, तो वो भी सेम आउटपुट देगा? नहीं, ये हाइफन हाइफन वर्बोस, if you do something here, right, now this verbose is actually expected from your script. अब ये क्या हो रहा है पता है क्या, this has become the first argument of your script. Your script is also a command. If you put anything here, now it's a तुम्हारी, if your script not going to expect this, nothing gonna happen. ये वाला जो है इस स्क्रिप्ट का एक्सपेक्टेड था फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट आर्गुमेंट ऑफ दिस। ये स्क्रिप्ट है, ये फर्स्ट आर्गुमेंट है, ये सेकंड आर्गुमेंट है। when you put this become the first argument for this one. So this will only show you in verbose if you have the logic inside your script. Other, if your script is not expecting a flag like this, nothing gonna happen. Let's see that. Like, अगर मैं उसको x निकालता हूँ, अब ये इसमें ऐसा है कि कंप्लेन नहीं कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे अगर स्क्रिप्ट में जाके मैं ऐसा कंडीशन लिख दूं, जो कि हम लोग आगे देखेंगे इनपुट आर्ग्यूमेंट कैसा लेना है यहाँ पे। लाइक एलएस को हम लोग एक फ्लैग पास करते हैं, तो एलएस क्या कर देता है, अलग तरीके से चेंज करके दिखा देता है। तो एलएस प्रोग्राम है, उसने ये पहला आर्ग्यूमेंट लिया है, दिस इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। अब हमारी स्क्रिप्ट को हमने एक फर्स्ट आर्ग्यूमेंट दिया डैश डैश वर्बोस, लेकिन हमारी स्क्रिप्ट हैंडल ही नहीं करती है वो, स्क्रिप्ट डजंट नो व्हाट आर वी सेइंग दिस। So we can add a condition there to handle if anybody pass verbose, to show that in verbose mode. If anybody pass whatever जो भी flag रहेगा, तो वो flag के basis पे we can write inside conditions, ठीक है, which we will see later about the flag. But this and this not the same. This is now like logic of your application now or your program. If you have a logic that can handle option like this, then that can happen. Otherwise नहीं। ये ऑप्शन यहाँ पे रन हो रहा है, एंड इन ऑर्डर टू सी दैट ऑप्शन वी सिंपली गो टू बैश मैन। सॉरी, मैन में जहाँ पे जितने ऑप्शन है ओनली दोज ऑप्शन आर वैलिड, द ऑप्शन व्हिच आर नॉट अवेलेबल हियर दोज आर नॉट वैलिड फॉर बैश।
राइट। तो मैन पेज में जितने भी ये है सारे हम लोग यूज कर सकते हैं। सो दैट्स थिंग। ओके, तो ये एग्जीक्यूटेबल like few methods or few ways you can use the executable. These two are common and ये वाला ज्यादातर you'll see a lot of people are using everywhere very commonly. ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, we'll stick to this, but I just want you guys to know that there is ये और ये दो ही हम लोग will stick to these two only. मतलब जो मैंने common method बताया ना, will stick to common method of execution. Just मैंने बता दिया हूँ because there will be some programs or some instructions that might be following some of these way. So तुमको बस समझ में आना चाहिए कि हाँ ऐसा भी होता है, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पे डिटेल आउट कर दिया है कि डिपेंडेंसीज भी क्या है, किसको किस तरह से रन करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, सारे इसी तरह से रन कर देंगे। तो मैं अभी दो काम करता हूँ यहाँ पर। मैं पहले जो हमने ये किए थे, नहीं तो ठीक है रहने देता हूँ, मैं उसको ये करता हूँ, vi लोकल यूजर बनाता हूँ। हेडर ऐड करते हैं shebang bin bash, और यहाँ पे एक और कॉमन प्रैक्टिस जो है वो होती है, मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो है, ठीक है। अब हेलो का है, सॉरी नॉट हेलो, नॉट अ कमांड बट हेलो स्ट्रिंग लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एको। अब मैं इसको रन करता हूँ तो I'll simply make it +x कर देता हूँ, right? That is also one of the way we have seen this in file permissions. I can do number as well, but I think this is better, this is faster right now, इसलिए वो कर लेते हैं। +x करने से क्या होगा कि सारे यूजर को चले गए, एक्चुअली वो हर यूजर को x मिल गया। वो करने से क्या था, उसको मिला था। I could have just given it to the user as well, so u+x करना था मुझे, that's all I had to do. I can actually reverse this for your practice, -x कर देता हूँ मैं, और फिर से हम लोग l करके देख लेते हैं, सबके निकल गए x। अब कल क्या करेंगे, हमारे यूजर को u+x करेंगे, फिर से l कर दें, तो नाउ सेम एज 755 और 744 जो हमने इसके लिए किया था। तो दैट्स आल्सो अगर तुमको ग्रुप को भी देना है तो UG+x करना पड़ेगा, अगर तीनों को देना है तो जस्ट से +x एंड वो तीनों अज्यूम कर लेगा, और किसी एक को देना है तो दैट्स द वे यू कैन डू दैट। So what are the combination you can give to all three, you can give to any two, so that two could be user, group, other, तो UO, UG और GO हो सकता है, या फिर it can be all three, you simply give it that way +x। अब इसको रन करते हैं, ठीक है, हेलो आ गया इसमें। अब इसके अंदर में एक चीज कॉमन, व्हाट अनदर थिंग व्हिच यू विल सी दैट पीपल आर यूजिंग इज कि लोग क्या करेंगे, एंड दैट्स आल्सो अब मैं तुमको सारे जो है ना बेस्ट प्रैक्टिसेस बता रहा हूँ जो यू शुड फॉलो इट रिगार्डलेस ऑफ व्हाट टाइप ऑफ स्क्रिप्ट यू आर यूजिंग। तो एको देयर आर टू थिंग्स, देयर आर प्रोग्राम्स एंड देन देयर आर बिल्ट इन्स। लाइक ls जो है ये प्रोग्राम है, बट echo जो है that is a built-in. echo is also a program but it's also coming as a built-in with the shell. प्रोग्राम ऐसा है कि जो तुम्हारे शेल तुम्हारे कर्नल या ओएस के साथ में नहीं आया, तो क्या रहेगा कि बेस्ड ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम दैट पाथ माइट चेंज फॉर द प्रोग्राम। तो लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम का हमेशा एब्सोल्यूट पाथ देंगे और बिल्ट इन यू कैन गिव अ रिलेटिव पाथ। दोनों भी प्रोग्राम्स ही है, बट हम लोग उसको ऐसा समझेंगे, एक जो रहेगा उसको हम लोग वी कैन गिव बिल्ट इन एज एब्सोल्यूट रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ नहीं, जस्ट कमांड, पाथ ही देने की जरूरत नहीं है, जस्ट कमांड नेम, बट यहाँ पे हमको पूरा एब्सोल्यूट पाथ देना है। और ये तुम्हारा कमांड का जो भी नाम रहेगा वो, ठीक है। अब द ओनली थिंग इज कि हाउ डू वी नो कि कौन सा बिल्ट इन है कौन सा नहीं है बिल्ट इन। अभी जो हमने कमांड यूज किया है, मैंने अभी हमारी स्क्रिप्ट में क्या यूज हो रहा है, हम लोग ने यूज किया है एको हेलो बोला हमने, तो ये एको जो है दैट इज द, अब ये कमांड है। अब वेदर इट्स अ बिल्ट इन और नॉन बिल्ट इन, हम लोग ये देखते हैं कि ये नॉर्मल प्रोग्राम है या बिल्ट इन है, वो हम लोग वेरीफाई करते हैं, एंड दैट्स समथिंग वी कैन डू इट विद द कमांड कॉल्ड टाइप।
अब टाइप कमांड भी हम लोग देख सकते हैं, ये बिल्ट इन है या फिर ये प्रोग्राम है। तो टाइप करके भी हम लोग टाइप कमांड से हम लोग चेक करेंगे उसको। तो टाइप करते हैं echo एंड echo इज द शेल बिल्ट इन, राइट। तो इसको हमको फुल पाथ देने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम ये करोगे डैश ए करोगे तो ये सारे ऑल इंस्टेंसेस बताएगा कि echo समटाइम्स क्या रहेगा कि शेल बिल्ट इन भी रहेगा, और जो डेबियन कम्युनिटी है वो echo का प्रोग्राम बना के भी डाल सकती है। तो एक्चुअली इसमें डाला हुआ, तो इसका एग्जीक्यूशन कैसा होगा, ये शेल बिल्ट इन पहले ये पहला एग्जीक्यूट होगा। अगर तुमको बिन echo यूज करना है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो ये भी हुआ, और ये जब मैंने यूज किया हुआ हेलो जस्ट, तो ये वाला शेल बिल्ट इन था, और ये वाला जो है यूजर का या फिर ओएस स्पेसिफिक प्रोग्राम था, दिस वाज नॉट अ शेल बिल्ट इन। तो अगर शेल बिल्ट इन कोई नहीं है तो उसको ऐसा पाथ देना हमेशा, मतलब ऐसा देना। यू विल सी स्क्रिप्ट में तुम देखोगे कि ऐसा फुल पाथ दिया हुआ रहता है। जब किसी दूसरे की स्क्रिप्ट समझने की कोशिश करोगे तो देखोगे ऐसा फुल पाथ दिया हुआ है। तो आइडिया यही है, और द बेस्ट प्रैक्टिस इज दैट इफ इट्स नॉट अ शेल बिल्ट इन देन गिव अ फुल पाथ। क्योंकि ये पाथ क्या होगा, ये बिन अभी यहाँ पर है बिन एको में। अगर तुम उबंटू पे जाते हो तो ये बिन एको कहाँ रह जाएगा, यहाँ पे रहेगा वो मे बी। तो तुम्हारा वो क्या ये हो जाएगा, मतलब फेल होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हमेशा फुल पाथ दिया जाता है जहां पर से भी तुमको उसको यूज करना है। तो उस वजह से अगर बिल्ट इन नहीं है तो ऑलवेज गिव अ फुल पाथ। और बिल्ट इन पता कैसा करना है तुमको, एक टाइप कमांड से यू कैन फाइंड आउट कि वेदर दैट इज अ शेल बिल्ट इन और नॉट। टाइप ए करोगे तो सारे बता देगा। तो यहाँ पे एक बिल्ट इन भी है और यहाँ पे एको भी है। एक जो शेल के अंदर में कमांड है वही है। तो एज लॉन्ग एज यू आर यूजिंग अ बैश यू हैव द एको, यू डोंट नीड टू गिव अ फुल पाथ। ठीक है। तो ये है। अभी टाइप देखते हैं। टाइप में भी हम लोग देख सकते हैं, टाइप करके देख सकते हैं। तो टाइप इज अ शेल बिल्ट इन। टाइप में देखते हैं कोई प्रोग्राम है क्या। तो देयर इज नो प्रोग्राम, राइट, जो इस तरीके से था। तो टाइप इज ऑलवेज शेल बिल्ट इन। तो अगर मुझे प्रोग्राम में टाइप लिखना है, स्क्रिप्ट में टाइप कमांड यूज करना है, तो आई डोंट नीड टू गिव ऐसा कोई फुल पाथ, क्योंकि उसका कोई फुल पाथ है ही नहीं, वो बिल्ट इन है। ठीक है। फिर से आते हैं स्क्रिप्ट में, लोकल अभी नेक्स्ट क्या करता हूँ मैं, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं हम लोग। बाद में बिल्ट इन वेरिएबल्स भी देखेंगे, जैसे बिल्ट इन कमांड्स थे लाइक, तो बिल्ट इन वेरिएबल्स भी है, वो भी देख लेंगे। जो कि हमने पाथ बैश ये सारे कुछ हमने देख लिया, और वो कहाँ से सेट हो रहे हैं, जो इन्वायरमेंट स्पेसिफिक रहते हैं शेल वाले, वो भी। तो शेल स्क्रिप्ट के वेरिएबल है, इसलिए मैंने शेल वेरिएबल लिख दिया हूँ। इस पे लिख देते हैं हम लोग वर्ड, और इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पर लिनक्स। अब इसमें जो है ना, ये जो वेरिएबल का नाम है वे हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। अब ये वेरिएबल के भी जो है ना एक आरएफसी है, वो आरएफसी लिनक्स के लिए तो नहीं है, बट वो आरएफसी दिया हुआ है कि प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स के नाम किस तरह से देने। तो लिनक्स के लिए तो बहुत, क्योंकि लिनक्स इज नॉट लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसके अंदर में बहुत ही कॉमन चीजें दी गई हैं कि तुमने अंडरस्कोर, लेटर एंड वर्ड यूज कर सकते हो। तो वेरिएबल्स we can use underscore, letter and numbers. ठीक है। This is we can use for the variable, but variable start जो है ना, start cannot start uh, with numbers. Like कोई भी वेरिएबल नंबर या स्पेशल और स्पेशल कैरेक्टर भी नहीं ले सकते हम लोग। तो ये तीन ही वैलिड है वेरिएबल के लिए। और कोई वेरिएबल ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते कि फोर वैर ऐसा करके इक्वल टू सम लिनक्स, ऐसा नहीं बना सकते हम लोग कोई वेरिएबल, बिकॉज दिस इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल। वैलिड क्या रहेगा, आई कैन गिव अंडरस्कोर और वैर इक्वल टू लिनक्स, ऐसा दे सकता हूँ मैं, या वैर इक्वल टू लिनक्स। ठीक है। तो दिस इज अ वैलिड वेरिएबल्स एंड विच शेल वोंट
एक्सेप्ट करेगा। और दूसरा ये है कि वेरिएबल में लिनक्स में एक कॉमन प्रैक्टिस अगेन यूज की जाती है कि वेरिएबल्स आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। एनी वेरिएबल आउटसाइड ऑफ फंक्शन इज ऑलवेज रिटन विद द कैपिटल। ठीक है, तो वो कैपिटल में लिखा हुआ रहेगा हमेशा। वो तुम वेरिएबल को कैपिटल इसमें ही लिख दो, ऐसा ये कैपिटल रहेगा। तो आई कैन यूज स्मॉल लेटर एज वेल, बट ज्यादातर वेरिएबल में तुम देखोगे कैपिटल में ही रहता है। ठीक है, अब वेरिएबल लिख दिया, वेरिएबल को हम लोग को ये वेरिएबल लिख दिया। अगर मैं इस फाइल को फिर से रन करता हूँ जस्ट विद दिस स्टेट, फिर से आते हैं बाहर, रन करते हैं, तो ये क्या दिया उसने, सिर्फ हेलो ही दिया। उसने जो वेरिएबल था दिया नहीं, क्योंकि वेरिएबल स्टोर हुआ है, लेकिन स्टोर होने के बाद में वो कुछ हो नहीं रहा है उसके ऊपर। ऑन टॉप ऑफ दैट नथिंग इज हैपनिंग। तो हमको कुछ करना पड़ेगा उसके अंदर जाके। तो उसको हम लोग फॉर एट बेस्ट हम लोग उसको ये करते हैं, एको कर लेते हैं। तो एको करने के लिए प्रिंट करना है बेसिकली हमको। तो वेरिएबल डिक्लेयर ऐसा होता है, रेफरेंस ऐसा किया जाता है। तो दैट वाज द वेरिएबल डिक्लेरेशन, बट रेफरेंस ऐसा करना है। पावर शेल में डिक्लेरेशन रेफरेंस दोनों सेम वे में होता है। तो इफ समबडी नोज दैट और आगे तुम करोगे तो दैट जो डिफरेंस थोड़ा बहुत आते रहेगा उसके अंदर में। तो वेरिएबल को रन करना है हमको, तो इस तरीके से रन होगा। एको जो रहेगा डॉलर साइन लगा के रन करेंगे तो ये क्या कर देगा, प्रिंट करेगा। अब मैं इसको जाता हूँ और रन करता हूँ, तो हेलो बोल दिया और लिनक्स भी बोल दिया। ठीक है, तो दैट्स द वे वेरिएबल को प्रिंट किया जाता है। लेकिन तुमको एक ऐसा दिखाई देगा कि वेरिएबल जो है ज्यादातर जो बेस्ट प्रैक्टिस है, ग्लोबिंग एक ये रहता है। ग्लोबिंग अवॉइड करने के लिए ग्लोबिंग ये रहता है कि जब हम लोग आगे मैं बताता हूँ एक एग्जांपल के साथ में, तो ज्यादातर ग्लोबिंग अवॉइड करने के लिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो की गई है। मिक्स नहीं होना चाहिए, मतलब जब तुम स्ट्रिंग वेरिएबल्स और नंबर्स वगैरह कंकैटिनेट करते हो, मतलब मिलाते हो, तो वो एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करना चाहिए, या फिर वो लिनक्स या शेल कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो। तो उसको अवॉइड करने के लिए मतलब ग्लोबिंग बोला जाता है। जब व्हेनेवर यू डू द ग्लोबिंग यू कैन बहुत सारे जो चीजें तुम गलत कर सकते हो, या फिर लिनक्स कंफ्यूज हो जाएगा या शेल कंफ्यूज हो जाएगा कि तुम करना क्या चाहते हो। तो उसको अवॉइड करने के लिए द रेकमेंडेड इज कि तुम ऑलवेज अपने जो वेरिएबल को रैप करके यूज करो डबल कोट में। तो अगर मैं ऐसा उसको डबल कोट में रैप करता हूँ और फिर से मैं उसको रन करूंगा तो इट वर्क्स। ठीक है, तो डबल कोट्स में अगर मैं करता हूँ तो इट वर्क्स, लेकिन व्हाट इफ आई डू इन सिंगल कोट्स। सिंगल कोट में गया तो उसने उसी को प्रिंट कर दिया। तो उसने क्या किया, इसको स्ट्रिंग कंसीडर किया है कि डॉलर साइन एंड वर्ड लाइक ए स्ट्रिंग। तो सिंगल कोट में उसने उसी को प्रिंट कर दिया, उसने कुछ बताया भी नहीं। ये है उसने सीधा सिंपली जाके उसी को हमारे लिए प्रिंट कर दिया जब हम लोग सिंगल कोट में ले रहे हैं। तो ये डबल कोट सिंगल कोट का ये रखना है, मतलब डिफरेंस याद रखना है। एंड जो ज्यादातर वे में यूज होगा ना जो कॉमनली यूज किया जाता है, जो बेस्ट प्रैक्टिस है डबल कोट, एंड इसको पूरे को रैप कर देना है कर्ली ब्रेस में। सो दिस इज द ये मतलब ये ज्यादातर तुमको दिखाई दे रहा है कि लोग कुछ कोई लोग स्क्रिप्ट को ऐसा कॉल कर रहे हैं, रेफरेंस कर रहे हैं, कोई ऐसा कर रहा है और कोई ऐसा कर रहा है डायरेक्ट। तो अभी देखो कितने इसमें ये करते हैं। जो सिंगल कोट है वो कोई नहीं करेगा बिकॉज दैट डजंट वर्क। द रेस्ट ऑल वर्क्स। राइट, अगर इसको मुझे वर्बोस में करना था, जो तुमको ये को बैश से रन कर सकता हूँ इसको मैं, तो देखो वर्बोस में आ गया है। तो एको हेलो किया उसने रन, ये आया। फिर ये वेरिएबल स्टोर किया, उस वेरिएबल को उसने एको लिनक्स किया। फिर एको इसने ये सारा सब्स्टिट्यूट बताएगा तुमको कि कौन सा वेरिएबल सब्स्टिट्यूट होके क्या हुआ। तो एक्चुअल कमांड ये रन हुआ है, लेकिन अगर तुम हमारी फाइल में अगर देखते हैं हम लोग, तो फाइल में तो एको वर्ड एको वर्ड एको वर्ड ही जा रहा था अलग अलग वे में। तो यहाँ पर इस तरीके से उसने बता रहा है कि ये वाला वर्ड था वो सब्स्टिट्यूट होके लिनक्स बन गया, ये वाला जो वर्ड था वो भी सब्स्टिट्यूट होके लिनक्स बन गया, क्योंकि हमने यहाँ पे उसको वर्ड इक्वल टू लिनक्स बोला। तो जहां जहाँ पे प्लस साइन है ना, वो स्क्रिप्ट के अंदर में काम हो रहा है। जो भी प्लस साइन के बाहर है वो तुमको एक्चुअली दिखाई देता है। जो तुमको यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है ना, तो दिस इज आउटपुट। और जो भी प्लस है ना वो सारे के सारे तुम्हारे स्क्रिप्ट के अंदर में हो रहे थे, तो तुमको दिखा रहा है कि क्या क्या कहाँ पे हो रहा था। ठीक है, so that's the way to do it.
ठीक है, आई थिंक आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। शेल स्क्रिप्ट एटलीस्ट स्टार्ट तो हो गई हमारी, और हम लोग इसको आगे अब जो है आगे की भी एक्टिविटीज करेंगे। तो यहाँ पे अगेन फोकस था कि तुमको एक आइडिया, एक कल्चरल चेंज के लिए था जो स्टार्ट किया था मैंने, ताकि तुमको बता दिया जाए कि देयर इज अ स्कोप। अब ऐसा, अब वो टाइम चले गया कि जब हाँ तुम चलो प्रोग्रामिंग अवॉइड करके भी, प्रोग्रामिंग तो करना नहीं है हमको, लेकिन इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, तुमको बस समझना है एंड इट्स फन। तुम ऑटोमेट करोगे चीजों को तो तुमको इतना मतलब सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, यू विल फील वेरी गुड अबाउट इट व्हेनेवर यू डू सम काइंड ऑफ छोटा ऑटोमेशन भी करोगे ना, तो तुमको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसलिए तुम एक अपना जो माइंडसेट है चेंज कर लो, साइकोलॉजिकल, इट्स ऑल साइकोलॉजिकल गेम। तो तुम अवॉइड मत करो कि नहीं प्रोग्रामिंग मेरे से हो ही नहीं पाएगा, स्क्रिप्टिंग हो ही नहीं पाएगा। स्क्रिप्टिंग इज एज इजी एज दैट। जो हम लोग कमांड यूज कर रहे थे उसको बस फाइल में रखना है और रन करना है। अब जस्ट आगे कुछ चीजें चेंज होंगी, चेंज मतलब कंट्रोल करेंगे हम लोग ज्यादा उसको। लाइक ऐसे यूजर बनाना था, तुम अगर जैसा शेल पे, जैसे तुम कमांड लाइन पे यूजर बना रहे थे, उसको फाइल में रख दो और उस फाइल को बार बार रन करो, तुम्हारा बनते रहेगा। अब ऐसा है कि यूजर ऑलरेडी बन गया है, तो भाई ये फाइल फेल हो जाती है, तो उसको हैंडल करने के लिए कुछ कंडीशन लगा दो वहाँ पे कि अगर यूजर ऑलरेडी एडेड है, यूजर ऑलरेडी एडेड है लेकिन उसका कुछ मिसिंग है प्रॉपर्टीज, तो उस प्रॉपर्टी को ऐड कर दो। तो वो चीजें मतलब कंडीशन से होगी, मतलब कंडीशन लगाई जाएगी और वो चीजें देखेंगे। और दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। तुमको सारी भाषा में समझ में आ गई जो हम लोग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। अब वो जो लैंग्वेज यूज कर रहा है हम लोग, क्योंकि हम लोग लिनक्स से बात कर रहे हैं, तो लिनक्स को जो भाषा समझ में आती है वो भाषा में उसको बताएंगे। तो बाकी सी वगैरह जो रहता है वो प्रोग्राम का रहता है। तो सारे लैंग्वेजेस है ना, इनको लैंग्वेज बोला जाता है, क्योंकि वो जो उनका रन टाइम रहता है, जो भी उनका जिसमें उसको रन किया जाता है, वो लैंग्वेज समझ में आती है। इसलिए हमको उसको उसकी भाषा में बोलना पड़ता है कि तू ऐसा काम कर। और वो है, तो इसलिए इनको लैंग्वेजेस बोला जाता है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस, क्योंकि ये भी एक लैंग्वेज है विच वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड देन वी नीड टू टेल। तो वो हमारे जो हम लोग चाहते हैं वो काम वो कर देगा। ठीक है, तो विल रैप इट अप फॉर द डे। कल कनेक्ट करते हैं एंड विल, और उसको थोड़ा और एक लेवल आगे जाएंगे एंड देन हम लोग गिट इंट्रोड्यूस करेंगे। द मोमेंट वी स्टार्ट राइटिंग थोड़े और हम लोग कोड यूज करेंगे तो हम लोग गिट पे आ जाएंगे। बिकॉज गिट, द आइडिया, माय आइडिया वाज टू इंट्रोड्यूस गिट व्हेन वी स्टार्ट एक्चुअली डूइंग समथिंग। हम लोग पहले कुछ करेंगे, प्रॉब्लम्स में भी आएंगे, तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तो ही तुम लोग भी वो प्रॉब्लम को फील कर सकते हो। तो आई वुड वांट यू गाइस टू प्रैक्टिस एज वेल जो हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा हम लोग कोड करेंगे। बिकॉज गिट विदाउट कोड नो, कुछ फायदा नहीं है उसका। तो हमको थोड़ा कोड करना है और उसके बाद में फिर हम लोग गिट को उसके अंदर लेकर आएंगे। ठीक है, तो पॉइंट इज प्रैक्टिस करो। ओके, ठीक है, किसी को क्वेश्चन है तो मे बी वी कैन टेक 1 or 2 क्वेश्चन। नहीं है तो लेट्स रैप दिस अप एंड लेट्स कैच अप टुमारो। थैंक यू।